اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے کیسی ہیں؟ ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، آج ہماری نئی بک ہے، آگے ہم چل رہے ہیں سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے ہماری، اور اس کی آیت نمبر آج ہم 63 سے پڑھ رہے ہیں، 63 اور 64۔ I think میں دیکھتی ہوں، ایک منٹ۔ 64 ہی ہوگی ہے، 63 تک تو لاسٹ میں پڑھ لیا تھا۔ ہوں بہرحال جو بھی ہے پڑھنا ہے نا، سب کو پڑھنا ہے، جی، تو وہ ابھی آگے 63۔ جاتے I think ہیں۔ میں 63 نہیں کیا تھا۔ 63 سے جی کرنی تھی۔ ہاں تو پھر 63 میں نے تو بک ختم کروا دی تھی پچھلی والی نا، ہوں اب یہاں سے پڑھے، پچھلی والی میں ختم کرا گئی تھی پچھلی ریکارڈنگ میں، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو ہوں جی پڑھیں گے آج، وَإِذَا أَخَذْنَا۔ اچھا، یہ اسی میٹنگ میں رہتا ہے نا؟ مجھے کوئی اور بھی نظر آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اسی میں رہنا ہے نا؟ ہاں میٹنگ تو یہی ہے، مجھے بھی کوئی اور نظر آ رہی ہے، لیکن کون ہے؟ تھوڑا اپنا پتہ نہیں۔ تعارف کروائیں، کون ہے سسٹر؟ رابعہ، روبینہ کون ہے؟ سیدہ رابعہ گیلانی، مائک اوپن کریں گے بیٹا؟ میرے خیال میں صبح کلاس لے کے گئی ہیں، ابھی تک انہوں نے ایگزٹ نہیں کیا۔ سیدہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ چلے رہنے دے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، سن لیں گے۔ جی جی۔ پڑھیے یہاں سے، وائز وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ بھی کو بات ہے، پڑھیے۔ وَإِذْ and when أَخَذْنَا we took مِيثَاقَكُمْ your covenant وَرَفَعْنَا and we raised فَوْقَكُمْ above you الطُّورَ the Tur خُذُوا you all take مَا what آتَيْنَكُمْ we gave you بِقُوَّةٍ with full strength۔ اگر آپ نیچے نہ دیکھیں تو ترجمہ کر سکتے ہیں، وائز کا کر سکتے ہیں، وائس کا کر سکتے ہیں۔ ہاں آخذنا کا کر سکتے ہیں، جی، خود سے یاد آ جاتا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں نا ٹیک سم ہاں تھنگ خود۔ وی ٹک، ہوں پاسٹ ٹینس ہے ہوں نا، اخذنا۔ جی ہوں اخذ آ سے شروع ہوتا ہے اور چھٹے سیغے پہ اخذنا بن جاتا ہے، یہ بڑی نون کے ساتھ۔ ہوں اخذا، 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 اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا۔ اخذنا ہوں یہاں پہ بنتا ہے یہ بڑی نون کے ساتھ، ان سب عورتوں نے لیا۔ اخذنا بنتا ہے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد بنتا ہے اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اینڈ اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذنا۔ یہ لاسٹ والا سیغہ ہے، 14th ہوں ون۔ ہوں لیا ہم نے، وی ٹک، لیا ہم ہوں نے۔ میثاقکم کیا لیا؟ کس نے لیا؟ نہ ہم نے، میثاقکم کیا لیا؟ پختہ عہد، ہاں ایگریمنٹ۔ ہوں ہاں ایگریمنٹ، ہوں اور یعنی یور ایگریمنٹ، ٹھیک ہے نا، یعنی کم تم ہے نا تم یہ سے ایگریمنٹ۔ لیا، تم ہوں سے لیا۔ ہوں ہوں ورفعنا یہ بھی وہی والا ہے نا، نہ ضمیر سے ہوں پہلے سکون آ رہا ہے۔ اینڈ وی ریسڈ فوقکم، ہوں کہاں پہ ریس کیا؟ فوقکم تمہارے سروں پہ، تو ہوں فوقا کیا ہے؟ ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا بنے گا؟ فوقکم ابو یو، یعنی تمہارے سروں کے اوپر۔ ابو یو کا مطلب ہے سر سے اوپر جو چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں پیروں کے اوپر نہیں، سر کے اوپر۔ تو سر ہوں کے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کو فوقا کہتے ہیں، جو پیروں کے نیچے ہوتی ہے اس کو تحتا کہتے ہیں۔ ہوں تو تمہارے سروں کے اوپر اس کو ہم نے ریز کیا، کس کو؟ پہاڑ کو نا، تور کو، پہاڑ۔
कहाँ पे फौकियत भी मेरे ख्याल रिलेशन, से इसी से निकला है फिर। फौकियत, हाँ फौकियत देना, अबाव रेस यानी हम्म अबाव है ना, हम्म किसी चीज को अभी हम्म अबाव रखना। खुजू, हम्म खुजू यू ऑल टेक। हम्म अब ये भी माजी ही है, खुजू। अब ये फेले अम्र है, ये खुद से बना हुआ है, खुद अमर बन हम्म जाता है ना, उससे फिर खुजू बनता है, जैसे कुल से कुलू बनता है ना, हम्म उस तरह हम्म से। तो सही। उसके बाद यू ऑल टेक, ये फेले अमर है, मा वट आतई ना कुम वी गेव यू। ना जमीर यही वाली आ रही है, अखजना वाली, हम्म और कुम हम्म क्या है, ये मफूल बन रही है, वी ऑल गेव यू, हमने दिया, हम सब ने दिया तुमको, बिकुवतन, वी गेव यू, ऑल भी कर सकते हैं, बिकुवतन विद फुल स्ट्रेंथ। हम्म ठीक है ना, क्या फुल स्ट्रेंथ से क्या दिया। अब यहाँ पे इसको पढ़िए, फिर देखें यहाँ पे आगे क्या आता है। आतैनाकुम, वी गेव यू ऑल, वी गेव यू, दे वर गिवन द तौरा, तो किताब तौरात दी गई, हम्म बिकुव्वतिन। हम्म ठीक है ना। हम्म आतैना का मतलब होता है, जब दो हमजे आ जाते हैं तो आतैना का मतलब होता है देना। हम्म हमने दी तुमको, क्या दी, तौरात दी। तौरात। और अब बिकुव्वतिन क्या है, विद फुल विद फोर्स। फुल फोर्स। कुव्वा हम्म मीन स्ट्रेंथ, used हम्म for two types of strengths, physically और हम्म उसके बाद टेंजिबल। इंटेलिजेंस, हाँ, टेंजिबल फर्म, और फर्म रेजोल्यूशन। डिटर्मिनेशन से जो जो चीज ली जाती है, फुल हम्म डिटर्मिनेशन से जो चीज है। जी। अच्छा, आगे हम पीछे पढ़ के आते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। सही है, तो ये मुझे थोड़ा सा इसका बताना था, बेको वतन का क्या मतलब है। पढ़े बेटा, यहाँ से कौन आप ही पढ़िए, जबन इसराइल। हानिया पढ़ी। The हानिया। Bani Israel are being reminded of their past and their history and how they must offer gratitude for the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon them. They are being reminded of what happened to their forefathers. There is also a lesson for the Muslims. क्या पढ़ा आपने, क्या बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो चली गई, That अब चली गई है, वो जो थी ना वो चली गई है अब। मुझे लगता है वो सुबह से ही बैठी हुई थी शायद कोई। जी वो मीटिंग में रह गई होंगी। हाँ, वो मीटिंग में रह जाते हैं बाद दफा, फिर वो चली गई कि नई मीटिंग शुरू हो गई। हम्म तो बनी इसराइल उनको are रिमाइंड being कराया reminded गया था। their past and their history and how they must offer gratitude for the हम्म blessing that all bestowed upon them. They are being हम्म reminded of what happened to their forefathers. ये हम्म कौन से बनी हम्म इसराइल को से खिताब है ये वाला, ये जो मदीने में है, हम्म जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में है, उनके फोर फादर के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कैसे किया, कि हम्म उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी और क्या किया उन्होंने। उनकी हम्म ब्लेसिंग्स बताएंगे, ये उनके ग्रेटिट्यूड बताएंगे, उनकी हर चीज को। देर इज ऑल्सो अ लेसन फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है ना, मुस्लिम के लिए भी है। सही है, तो हमें भी क्या करना है, हम जब कुरान पढ़ते ग्रेटिट्यूड। हैं सबसे बड़ा हमारा नुकसान ये होता है कि उसमें हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरे को देख रहे होते हैं। अब ये बन इसराइल का हम्म पढ़े होंगे तो उनको देखेंगे, कौमी हूद को, साले को पढ़ेंगे तो उनका देखेंगे। ये नहीं सोचते कि ये किताब भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, और ये तो हम्म हमारे ऊपर के ना, हमें पढ़ने के लिए दी गई है, तो हमने अपना इसमें देखना है कि हम्म हम क्या कर रहे हैं, अपने किरदार को देखना, उसको बेहतर बनाना है। हम्म अखज़ना आ गया, पढ़ें। أخذنا همزة خاء أخذ जाल, is to जाल, take जाल। जाल, ठीक है zal. ना, जाल, ये इसका रूट वर्ड है। ठीक है। अखज़ा, أخذ is to take something or receive something from someone. Allah took from the Bani Israel a mithaq. मिसाक क्या होता है, वसक, वो साफ इसका रूट वर्ड होता है। वसक होता है हम्म पुख्ता अहद, हम्म जिसमें अल्लाह को गवाह बनाया जाए, अल्लाह ताला उनसे, यानी मिसाक वो होता है एग्रीमेंट जिसको बांधा जाए, बांधा जाए हम्म किसी कसम के साथ, पुख्ता अहद जिसको कहते हैं। जैसे हम्म शादी होती है ना, अब शादी में भी क्या है आपका, निकाह होता है, निकाह में क्या होता है हम्म आपका, अल्लाह ताला के सामने गवाहान की मौजूदगी में वो होता है, हम्म कॉन्ट्रैक्ट हम्म होता है, एक साइन होता है। तो इस तरह के हम्म जो होते हैं उनको मिसाक कहते हैं।
ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے, مساقا کم. Wausaka wasak is used for a rope in which a prisoner is tied, also used for a covenant, a contract, or an agreement. It is mandatory on both parties to do what they agreed upon. Used for a contract that is formal. A misak is a covenant that lays responsibility on the one who's making the contract. When an employer makes a contract with his employee, an oath is sworn upon it. اب دیکھیں, یہ وسق کا مطلب کیا, روپ ہوتی جس سے آپ کیا کرتے ہیں, روپ بن سے کیا جاتے ہوتا ہیں. ہے, روپ سے کیا کرتے ہیں, یعنی بن جاتے ہیں نا, ہاں اس سے ٹائی بن ہو جاتے جاتے ہیں, ہاں ٹائے ہو جاتے ہیں. ہیں. اب جیسے نکاح کی مثال میں نے دی ہے نا, اب اس میں کیا ہوں ہوتا ہے کہ ہم بڑا آرام 3 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتے ہیں, اور ہوں ایکسپٹ کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمیں جو بھی ہے, وٹ ایور اس کے ساتھ اس کی جو عادات ہیں, جو اس کا جو کچھ بھی دین ہے ایمان ہے, اس کے ساتھ ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, ٹھیک ہوں ہے نا. بڑے جی. شوق سے اور خوشی خوشی وہ سب ہو رہا ہوتا ہے, لڑکا بھی لڑکی بھی دونوں کر لیتے. ہوں جب انہوں نے یہ قسم کہا اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے میں نے ایکسپٹ کر لیا, لڑکی نے بھی ایکسپٹ کر لیا, لڑکے میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے ایکسپٹ کر لیا, جیسی بھی عادات ہیں خصلتیں ہیں جو بھی ہیں واٹ ایور اس کے اندر ہے, لڑکی کا بھی اسی طرح سے. بعد میں وہ کیا کرتے ہیں, ان کو ساری خامیاں نظر آتی ہیں, خوبی کوئی نظر نہیں آتی. ہوں اب تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, خوبی پہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ بندے میں کوئی خوبی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بری چیز ہے وہ تو ایک آدھی رکھی ہوتی ہے, باقی تو سب خوبیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر, اور وہی چیز جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہوتی ہے آپ کا, وہیں پہ جھگڑے ہوتے ہیں. اور ہم کیا ہوں کرتے ہیں, ساری خوبیوں کو ایک سائڈ پر کے اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ اس بندے میں تو ہوں یہ, اور ستیہ ناش ہو جاتا ہے رشتے کا. وہ جی. اس کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرنے میں لگا, ساری زندگی ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ ٹھیک کس ہوں کو کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اپنا. کرنا ہوتا ہے. ہوں کسی کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے, کسی کو نہیں کر ہوں سکتے, ہے نا, کبھی ٹھیک نہیں جی. کرتے. اس کا جو بن گیا ہے نا شاکلہ, اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جنہیں شاکلہ کہتے ہیں, جو سکس ہوں سیون سال کا بچہ ہو تو اس کو بن جاتا ہے وہ, اس کا آپ جو بھی ہوں عادات بنا دیں وہ اس کی پختہ ہو جاتی ہے وہاں پہ, 10 سال تک تو پکی اس میں چھاپ لگ جاتی. اب نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ ادھر کا ادھر ہو جائے تو سب مان لو, لیکن یہ عادات بدلی ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ہوں انسان کی عادات نہیں بدلی ہو سکتے, وہ اس کے یہی وہ اندر ہی رہیں گے. سائیکٹرسٹ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر انسان میں چینج آتا ہے نا, وہ 5 to 10% آ سکتا ہے, بس اتنا ہی آتا ہے. تو 5% کیا ہوتا ہے, 5% میں بھی وہی یہ نا. ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ اس میں آ جاتا ہے, کوئی لیکچر جی جی. سنا, کچھ ہوا, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر ایک ہوں دن صحیح رہا, اس کے بعد پھر وہ اپنی فطرت پہ آ جاتا ہے, یا آ ہوں بھی جاتا ہے چینج تو عمل کے ٹائم وہ فیل ہو جاتا ہے. ہوں تو یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو ہر چیز کی عادت ڈالے, کھانے کے ہوں آداب, یہ وہ, مہمانوں سے ملنا, یہ بچے کچھ شائع ہوتے ہیں ان کو سامنے لائیں, سوشل کریں, ہے نا, ہوں ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, وہ پھر نہیں ملتے کسی سے بڑے ہو کے بھی, ہوں ٹھیک ہے نا. کچھ بچے اتنے عادی ہو جاتے ہیں اپنے اپنے روم میں رہنے کے, شادی کے بعد ان کو روم شیئر کرنا مشکل لگتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے, یہ کہاں سے آ گیا, ہوں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ روم شیئرنگ والے بچے جو ہوتے ہیں, جو ایک ہی کبڈ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی کمرے میں اور ایک ہی واش روم یوز کر رہے ہیں, 2 بھائی ہیں 3 ہیں یا 2 بہنیں ہیں 3 ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہوں وہ لوگ پھر شیئرنگ میں صحیح رہتے ہیں. جو جی. بالکل سیپریٹ سیپریٹ رہتے ہیں نا, پھر ان کے لیے شیئرنگ عادت ہو بہت جاتی مشکل. ہے. آپ کی گھر سے ہی کوئی آپ کے کمرے میں آئے گا تو بولے گا کیوں آ گیا اور جی. کب جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا. ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ, بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, تو میرے کمرے سے نکلے. نکلو نکلو, میری پرائیویسی, میرا یہ ہوں پھر سیل فون, پھر پاسورڈ, پھر یہ چیزیں, وہ پھر لائف کے ہاں. اوپر. اب جب آتی ہے نا لڑکی آتی ہے نا, تو پھر وہ اس لڑکے کو بہت, کیونکہ اکیلا رہنے کا عادی ہوتا ہے سب, تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں اور جن میں دین اور ایمان ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک وثق لیا ہے, میثاق کیا ہے, اللہ کے سامنے ایک ہاں. کانٹریکٹ کو سائن کیا ہے نا, ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ اس کا پاس کرتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. بلکہ اللہ تعالیٰ خود محبت ڈالتے ہیں, جب آپ ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی محبت ڈال دیتے ہیں. ہوں صحیح ہے. جی.
पहले जमाने में जो शादी में हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को देखा हुआ भी नहीं होता था, लेकिन जी। बड़ी अच्छी अच्छी उनकी इतना लंबा लंबा जिए, पोते पोतियों की शादियां भी करके, और उनका आपस में हंसी मजाक चल रहा होता है, सब होता है। ऐसे ही होता है ना। हम्म। लेकिन जी। आजकल के अब बच्चे अहमियत नहीं देते ना, निकाह को उतना समझते नहीं, वो इतना आसान लेते हैं कि बस नहीं बन रही तो छोड़ दो फौरन। छोड़ दो, फिर उसके जो असरात होते हैं ना, अगर छोड़ना है तो बहुत अर्ली छोड़ दें। अगर आप समझते हैं कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि मैं लाइफ गुजार सकूंगी, हम्म। या बंदी इस हम्म। काबिल नहीं है, तो फिर अर्ली। जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, फिर वो जी जी। एक फैमिली तबाह हो जाती है, वो फिर जी बहुत जनरेशन में नुकसान जाता होता है। है। वो बच्चे हम्म। बेचारे ना कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर। यहाँ के लॉ ऐसे ही है ना। सोच समझ, मुझे तो लगता है सोच समझ के करना चाहिए, और जब आप एक दफा फैसला लें तो कोशिश करें उसको निभाएं, इस तरह नहीं होना चाहिए हाँ, छोड़ तो छोड़ इसलिए तो दिया नबी मैंने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि तुम उसकी शक्ल पे मत जाओ, हम्म। उसकी वेल्थ पे भी मत जाओ, हम्म। उसके तकवे पे जाओ। जो भी पार्टनर है हम्म। उसके उसके तकवे पे जाओ। हम्म। सही है ना। उसमें तकवा कितना है, तकवा का मतलब है अल्लाह ताला का खौफ। मैं तकवा का मतलब ये नहीं कह रही कि वो नमाज रोजा कितना करता है, मैंने बहुत से नमाजी हम्म। देखे हैं, कुरान के जी हाफिज जी सब सही कह देखे रहे हैं, नहीं है वो सही। हैं। हम्म। ना उनका कोई अमल सही है, ना आगे उनका भी सलूक सही है, ठीक है, अपना भी कुछ नहीं। जी। तो तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह इज वॉचिंग, अल्लाह इज वॉचिंग। हम्म। तकवा है अल्लाह इज वॉचिंग मी एवरीवेयर। और अल्लाह हम्म। मुझे, अल्लाह को हिसाब देना है। फिर वो अकेले भी मियां बीवी नहीं लड़ेंगे, और सामने तो होता ही नहीं है, वो तो हम अखलाकन भी नहीं लड़ते, है ना। हम्म। ज्यादा कहाँ होता है जब हम अकेले 7 साल साल तक वो बेचारे एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहते हैं, और लड़का हम्म। लड़की को करता रहता है, या जो वाइस वर्सा, जो भी बुरा हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, ऐसे ही होता है ना। अब वो ऐसे ही होता है। 7 8 साल के बाद फटता है बम, पता चलता है कि ये लोग किस तरह हम्म। जिंदगी गुजार रहे थे, एक रूम के अंदर बच्चे भी हो गए, दो हम्म। दो तीन तीन बच्चे भी हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये बेचारा मेरा बेटा था, ये कितना पिस रहा था, है ना, और वो हम्म। लड़की जो मैं लाई थी वो अंदर खाना क्या कर रही थी उसके साथ। तो ये चीजें होती है हम्म। ना। तो अब बच्चे इन्वॉल्व हो गए, अब सब कुछ, फिर पिसता कहाँ पे है, मर्द ही पिसता है बेचारा कि चलो कुछ कर लो। हम कहते हैं ना, औरत 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 करती है, वो जमाने गए जब औरत करती थी। अब हम्म। औरत नहीं करती है, औरत कहती है नहीं, नहीं तो ना सही, मुझे दो खर्चा हम्म। सारा, और मैं जा रही हूँ अलहदा, और सारा हमारा खर्चा उठाओ, हर चीज करो। मुझे लगता आजकल है ये दोनों में बर्दाश्त नहीं है, मुझे लगता है दोनों में ही नहीं है। बर्दाश्त दोनों में नहीं होती, लेकिन लड़के जब भी बच्चे हो जाते हैं ना, लड़के तो भी ना, फिर मैंने उसके देखा है बाद। बहुत जल्दी बेजार आ जाते हैं, यानी पहले उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही फैमिली बच्चों की जिम्मेदारियां आती है ना, तो हाँ मुझे हाँ। लगता है उनको लगता है कि मतलब ये क्या करना पड़ गया, मतलब शादी तो जाहिर है ऐसा तो नहीं आप खाली इसे एंजॉय तो नहीं करते रहेंगे, आखिर जिम्मेदारी भी तो लेनी होती है ना। इन इन मुल्कों में पता है क्या होता है, ज्यादा औरत का साथ दिया जाता है, जी जी। बच्चों का साथ दिया जाता है। हम्म। तो वो फिर ना उनको फायदा नजर आता है। तो अब तो हर जगह ऐसा ही हो गया, हर जगह हम्म। ऐसा ही हो गया अभी। बहरहाल हम उधर से टॉपिक से निकल गए, मैं पुख्ता ऐद की बात कर रही थी, और ये जरूरी है थोड़ा, जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो पुख्ता ऐद होता है वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम्म। और उसमें अल्लाह को बीच में इन्वॉल्व करते हैं हम। बाकायदा हम्म। दुआएं भी की जाती हैं, आयात भी पढ़ी जाती हैं। उसके बाद जो होता है वो फिर बहुत ही, पहले नहीं होता था। पहले तो हम्म। हालांकि पूरी फैमिली के साथ रह रहे होते थे, और मेरे ख्याल में वो रहना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो उनको फैमिली की हम्म। थोड़ी शर्म होती है। फैमिली के हम्म। अंदर जब रह रहे होते हैं तो थोड़ी शर्म होती है कि सास है ससुर है, थोड़ा सा डर भी होता है, तो वो चलता रहता था। अब ये जो बिल्कुल हम्म। ही अलग हो जाते हैं ना, कि हमें तो अलग ही घर चाहिए, अलग ही, उसमें फिर जाके वो बिल्कुल, अल्लाह तो उनको भूल ही जाता है कि अल्लाह भी देख रहा है। वो कह रहे हैं बंदा तो कोई नहीं देख रहा ना, बस खैर। हम्म। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो वाइस वर्सा, आप जो भी हैं, अल्लाह माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं। ये नहीं कहना हम्म। चाहिए कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना। हमें पॉजिटिव साइड्स को हम्म। भी देखना है। ठीक है, अल्लाह में पॉजिटिव सबको अक्ल देंगे। अक्ल दे सबको, और सबको ईमान की दौलत नसीब करे, क्योंकि जब भी हम यहाँ कोई काम करें ना, तो हमें आखिरत को पहले रखना होता है। जी जब यही हम तो बात है। आखिरत को भूल जाते हैं, तो फिर तकवा भी नहीं रहता, अल्लाह का डर भी नहीं रहता। अगर आखिरत का हम्म। खौफ हो ना, आखिरत का यकीन हो कि मैंने अपनी हर बात का नोट की जा रही, उसका जवाब देना, सही, हम्म। तो फिर वो आपका
आपका अमल भी बेहतर रहता है। Hmm. अच्छा, आगे पढ़े बेटा, व्हाट वाज दिस? What was this covenant? To follow the Torah, to abide by the law. This is the promise that they made with Allah. When was हम्म it taken? When the Bani Israel became weak in their actions and became negligent toward the commands of Allah, then the covenant was taken from them. हम्म। तो अब यहाँ पे क्या है, क्या होता है ये, टू फॉलो द तौरा। मिसाक क्या जी, था? फॉलो करना था। हमें भी तो ये कहा गया कुरान को फॉलो करो। तिलावत का मतलब होता है फॉलो करना, रिसाइट करना नहीं होता। फॉलो का मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ा है उस पे अमल करना है। ठीक है। जी, रिसाइट करना और अमल ना करना बहुत गलत बात है। पढ़ना है, फॉलो करना है। फॉलो का मतलब है अमल करना है। जो आयत भी पढ़ी है उस पे, साहबा तो जब तक 10 आयतों पे अमल नहीं कर लेते वो आगे नहीं जाते थे। कहते नहीं, पहले हम इन 10 आयत पे तो अमल कर लें जो हमने पढ़ी, फिर आगे जाएंगे। टू अबाइड बाय द लॉ, दिस इज द प्रॉमिस दैट दे मेड विद अल्लाह। ठीक है। उन्होंने किया, लेकिन बाद में कब किया? जब वो उनके ऊपर कोयतूर का पहाड़ लाया गया था ना, बर्फान अल्लाह को, पढ़े ना ऊपर। हम्म, तो तूर को उनके सरों पे लाया गया, मैंने भी बताया ऊपर। तो बाद में उन्होंने जब पहाड़ हट गया, हम भी क्या करते हैं, हम भी यही करते हैं ना। जब कोई मुश्किलें हम्म, आती हैं तो हम बड़े नेक बन जाते हैं भूल जाते। ना, फिर उसके बाद भूल जाते हैं अल्लाह को, है ना। फिर कोई मुश्किल आई तो फिर तस्वीर पकड़ ली, फिर ना मुसल्ला बिछा लिया। हम्म। तो ये नहीं। हम्म। जो अल्लाह को अच्छे वक्त में याद करता है, अल्लाह सिर्फ उसकी बुरे वक्त में मदद करता है। हम्म। ये बात है। तो अच्छे वक्त में हम्म। जो याद नहीं करता उसको फिर अल्लाह ताला कहते हैं, जब वो दुआ करता है ना बुरे वक्त में, तो अल्लाह कहते हैं तू कौन है, मैं तो तुझे पहचानता ही नहीं, आई डोंट नो यू। हम्म। हम्म। तो आप अच्छे वक्तों में अल्लाह के याद, अल्लाह ताला बुरे वक्तों में आपका ख्याल रखेंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी हम्म। हेल्प करेंगे। तो जिक्र क्या है? जिक्र की बहुत सी किस्में हैं। नमाज भी जिक्र है, तस्बीह भी जिक्र है। जो भी है, आप जो कुछ भी जिक्र करें, हम दुआएं मांगते हैं सुबह शाम, ये सब जिक्र में ही आ जाते हैं। अभी जो कर रहे हैं वो भी हम्म। जिक्र ही है। हम्म, जी। ये भी जिक्र है। तो किसी ये जी तरीके जी। से भी जिक्र करें, किसी तरह हम्म। भी अल्लाह का जिक्र करें। ठीक है। और नमाज जो हम्म। होती है वो दुआ है। अस्सलात का मतलब क्या होता है? दुआ। हम्म। सलात का एक मतलब दुआ है। तो वो दुआ जो होती है ना, वो पूरी नमाज दुआ है, तो उसको दुआ की तरह ही पढ़े। उसको हम्म। रिसाइट मत करें। एक एक जगह पे आराम आराम से, रुकू समझ में भी गई जाए, जी। सजदे में जाए। ठीक है। हम्म। 5 सिर्फ फर्ज पढ़ लें, ज्यादा ना पढ़े। मैं नहीं कह रही कि बड़ा लंबी नमाजें ये सुनते हैं तो वो नफल, तो नहीं। सिर्फ फर्ज पढ़े, लेकिन सही तरीके से पढ़े। सही हम्म। तरीके से पढ़ी नमाज 2 रकात भी बहुत हो जाती है जन्नत में लेके जाने के लिए का। हम्म। उसमें कोई ख्याल ना आए दुनिया का। अब हर वक्त तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आएंगे जी। ख्यालात, लेकिन कोशिश करें आएंगे। वापस आए, ट्रैक पे आए और उसको हम्म। फिर कंटिन्यू करें। हम्म। कोई कॉन्शियस ख्याल, रहना चाहिए नमाज के दौरान। कॉन्शियस, कॉन्शियस होके पढ़नी है ना। जैसे कॉन्शियस हम्म। हो के दुआ मांगी जाती है। गाफिल दिल की हम्म। दुआ तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। जी। गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं होती, चाहे वो मांगते हुए उसका ध्यान इधर उधर हो, सोचे इधर उधर हो और दुआ मांग रहा है, चाहे वो हम्म। गफलत की जिंदगी गुजार रहा है और फिर वो दुआ मांग रहा है। नो वे। हम्म। वरफाना का क्या मतलब है बेटा, पढ़ो। ورفعنا رفعين, to raise something, to lift it up, used in the tangible and intangible sense. ठीक है। आगे क्या? टू लिफ्ट समथिंग अप बाय फिजिकली। To lift something up physically, or when a person is promoted at their work, their rank or status is elevated. In this context, it means physically. हम्म। तो फिजिकली जो है ना, उसको सरों के ऊपर लाया गया था उसको। ठीक है। पहाड़ को जमीन से उखाड़ा गया। पहाड़ पता है नीचे बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको हम्म। बताऊं पहाड़ क्या होता है। पहाड़ ऐसे होता है जैसे हम दीवार में कील लगाते हैं। हम्म। तो कील का जो है, या तो हम उसको पूरा ही दबा देते हैं ना, मसलन हमने कोई टेबल बना रहे हैं उसमें कीलें लगा रहे हैं, तो पूरे ही दबा देते हैं ना। लेकिन अगर कोई वॉल हम्म। हैंगिंग करनी है तो उसको हम थोड़ा सा बाहर रखते हैं ताकि उसके ऊपर हैंग कर सके। ऐसे ही है ना। हम्म। जी तो जी। पहाड़ भी ऐसे ही है, वो जमीन के अंदर ही है, ऊपर उसका वो जो हेड है ना वही सिर्फ नजर आ रहा है। जो आपका हम्म। नेल होता है ना,
हाथों हम्म वाला नेल नहीं, जो दूसरे नेल होते हैं, उसका जो हेड होता है ना नजदीक ऊपर, वाला। वही नजर आ रहा है, बाकी पूरा अंदर है। हम्म अब उसको उखाड़ा हम्म गया। आप देखें, अगर आपको एक नेल निकालना है तो कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है, और पहाड़ को निकालना है तो कितनी एफर्ट होगी। अल्लाह के लिए तो कौन कहना हम्म है, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको उखाड़ा गया हम्म बाकायदा, लाया गया हम्म उठा के अम्ब्रेला की तरह उनके सरों पे लाया गया। और हम्म फिर उनसे अहद लिया गया कि तुम इस किताब को मजबूती से पकड़ो। डर गए ना, डर गए। हम्म और उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म और उसके बाद जैसे ही पहाड़ हटा, तू कौन, मैं और कौन, तो फिर हम्म वैसे ही हो गया, मिसाक को तोड़ दिया। इसी वजह से हम्म इनको इतनी सजाएं मिल रही है ना, मिसाक अल्लाह ताला से हम्म करके, अल्लाह से वादे करके। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अल्लाह की बंदगी करने का फैसला किया ना, कि नहीं किया। हम्म एक अल्लाह की किया बंदगी। ला हम्म इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है एक अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन शिरक हम्म देखें कितना होता है। हम्म सबसे बड़ा जो है ना एक शिरक होता है रियाकारी। हम्म अपने हर अमल में दूसरों को शरीक कर लेना। हम्म कारी है तो वो पढ़े जा रहे हैं कुरान, और लोग वाह वाह कर रहे हैं। अब वो उसकी भी नीयत यही होती है कि लोग जितनी वाह वाह करेंगे इतना शायद मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, और ये उसको भी अल्लाह हम्म की खातिर। इसी तरह कोई भी जंग में बहादुरी दिखा रहा है, वॉर है, लड़ाई हो रही है, अब उसकी अगर हम्म नीयत बहादुरी दिखाने की, तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म वॉरियर कहे लोग उसको, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला। इसी तरह सखी हम्म कह, मुझे कोई लोग लोग सखी कहें, हम्म कुछ नहीं मिलने वाला, कि ये नीयत खराब है अंदर। वो अल्लाह हम्म ताला ने जहां कहा है यहाँ माल खर्च हो, यहाँ सब जगह वो खर्च करता है। लेकिन एंड हम्म तक क्या होता है, उसको वहां मुंह के बल घसीट के जहन्नम में, क्योंकि तूने हम्म अल्लाह की खातिर किया ही नहीं अपना अमल। लोगों को दिखाने के लिए। लोग तो रियाकारी से भी बचना है, अपने हर अमल को रियाकारी से भी बचाना। हम अमल हम्म करते हैं और हमारे बहुत सारे अमल यहीं पे जाया हो जाते हैं, रियाकारी की नजर हो जाते हैं, ये भी शिरक है ना। हम्म और बास तो बाकायदा तौर पे शिरक कर रहे होते हैं, आपको पता ही है। वहां कहाँ हम्म सजदे नहीं करते, है ना, हर जगह जी। सजदे कर रहे होते हैं जाके। हाँ, मज़ारों पे जाना, पता नहीं क्या क्या। उसको छोड़ दें। फर्ज करें कि आपको कोई चीज, आपको कोई मुश्किल है और आपको किसी से कुछ चाहिए, तो आप 2 बार से, ये मैं डॉक्टर इसरार अहमद की बात बता रही हूँ, वो कहते हैं अगर हम्म तीसरी बार तुम उस बंदे के, 2 बार तुमने मांगा नहीं दिया और तीसरी बार भी जाके तुम मांगते हो, तो तुमने शिर्क कर दिया। अच्छा। नहीं करना, तीसरी बार जाके नहीं मांगना। 2 बार हम्म काफी है। उसने नहीं दिया, हम्म देना होता तो दे देता। आपने हम्म जाके अपनी हाजत रखी, अब तीसरी बार। सहाबा तो जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह ताला टूट गया, अब तू ही देगा, तूने ही देना है। हम्म बच्चों के दिलों में हम्म डालना है, हर चीज अल्लाह की तरफ से आ रही है, और जो नहीं है वो भी अल्लाह ने ही देनी है। कोई और बंदा इस हम्म काबिल नहीं, ना तेरा बाप इस काबिल है, ना मैं काबिल हूँ, ना कोई और काबिल है, ना कोई हमारा हम्म रिलेटिव है वो हमारा काबिल है। देनी है तो अल्लाह नहीं देनी है। हम्म इतना पुख्ता यकीन हो जाना चाहिए बच्चों को। हम्म तो आप लोग तो लकी हैं कि इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह आपकी बच्चियों की तरबियत हो रही है, और आगे जाके हम्म इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सब चीजें होंगी ना, दूसरों में जाएंगे इंशाल्लाह। ना, हाँ जाएंगे। जी। तो ये होता है फिजिकली उसको लिफ्ट किया गया था। ठीक है। और उसके बाद हम्म हाँ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट्स मीन फिजिकली। अच्छा, फौकाकुम अबव ऑपोजिट ऑफ ताहता। Above, opposite of tahta, below, above their heads. अबव देयर हेड जो होता है वो होता है फौका, और ताहता होता है पाँव के नीचे। हम्म ताहता अर्जुलु के, अर्जुलिकुम। ये मुजाफ है ना दोनों, फौका भी। जी। मुजाफ क्यों है, क्योंकि ये जर्फ है, और जर्फ जो हम्म होते हैं वो हमेशा मुजाफ बन के आते हैं। हम्म अतूर क्या है? Um, ta, ता wow, ra. तो Thor in Syriac language means double or mountain, used for a mountain that has very dense and lush green trees. Others say that Thor doesn't mean mountain, but it is the proper name of Mount नहीं। Sinai. हम्म, जैसे मदीना है What? ना, एक पीछे भी हमने हम्म लफ्ज मिस्र का भी पढ़ा था। तो मिस्र जो हम्म होता है वो एवरी सिटी होता है। ठीक है, एवरी हम्म सिटी के
इजिप्ट एवरी, को भी कहते हैं। और इजिप्ट को भी कहते हैं, मदीना एवरी सिटी को भी कहते हैं, शहर को, सिटी को, और हम्म अल मदीना मदीना भी है। बिल्कुल इसी तरह हम्म तूर हर पहाड़ को भी कहते हैं, और फिर स्पेशली हम्म ये जो उन्होंने बताया माउंट सीना, सीनाई, हम्म तो ये भी है जहाँ पे वो अल्लाह ताला ने पुकारा था ना मूसा अलैहिस्सलाम, हम्म बुलाया था, हम्म किताब देने हम्म के लिए बुलाया था, पहाड़ पे बुलाया था। हम्म सही है। तो अदर ये हो गया, पढ़ लिया आपने सारा यहाँ तक, आगे पढ़िए। वाई वॉज द Why माउंटेन। was the mountain lifted above their head? When Musa brought the tablets, Bani Israel said, "We want to see Allah." Then they were struck by lightning. They were brought back to life and refused to accept again. Then Allah lifted the mountain over the head. They were saved from the sea. They were given manna and salwa so that they could accept the truth. Surah Araf, Ayah 171, and mentioned when we raised the mountain above them as if it were a dark cloud, and they were certain that it was going to fall upon them. अच्छा, यहाँ पे टैबलेट का क्या मतलब होगा? टैबलेट्स, Uh, व्हेन मूसा ब्रॉट द टैबलेट्स, the बनी इसराइल Torah? से, आपकी टैबलेट, या खाने वाली टैबलेट? ये तौरात की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है। हाँ, तौरात की तख्तियां। हम्म देखिए, सारी किताबें, तीन चार ही तो किताबें हैं ना, जबूर है हम्म और ये है। अच्छा, इंजील अब हाँ, इंजील है और ये है। सारी किताबें हाथों में दी गई, बुलाया गया अंबिया को, उनके हाथों में दी गई पूरी पूरी हम्म किताब, जैसे मूसा के को तौरात दी गई। तो वो टैबलेट्स थी, तख्तियां थी, उनके ऊपर लिखा हम्म हुआ था। अब वो किस चीज की तख्तियां थी, लकड़ी की भी हो सकती हैं, लोहे की भी हो सकती हैं, तो उसके ऊपर वो लिखा हुआ था सब कुछ। पत्थर हम्म की टैबलेट्स भी हो सकती हैं, सिलें होती हैं ना हम्म बड़ी बड़ी, है, जी जी। वो भी हो सकती हैं। अब ये नहीं पता, लेकिन वो टैबलेट्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि उनको दे दिए। एक कुरान ऐसा है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। हम्म बाकी किताबों के लिए लफ्ज जो यूज होता है वो अनजला यूज होता है, कुरान के लिए तंजील यूज होता है। हम्म कुरान के लिए दोनों नाम, अनजला भी यूज होता है क्योंकि मैंने बताया लैलतुल कद्र अंजला में जो एक दफा में पूरा उतारा जाए और तंजील जो थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा आता है। कुरान के लिए दोनों है, हम्म लेकिन बाकी किताबों के लिए तंजील का लफ्ज नहीं आया, हम्म उनके लिए सिर्फ अनजला आया क्योंकि वो एक ही दफा दे दी गई थी। हम्म तो यहाँ पर यही कहा गया है, उन्होंने क्या कहा, वी वांट टू सी अल्लाह। हम्म जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये तख्तियां दी ना, अल्लाह ताला ने उनको दी हम्म तौरा, तो उन्होंने उनको दी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह को सी, हम यकीन करेंगे देखना। कि अल्लाह को देख लें। ठीक हम्म है। और फिर क्या हुआ, स्ट्रक बाय लाइटनिंग, दे वर ब्रॉट बैक टू लाइफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मैं अपने लोगों को जाके क्या बताऊंगा, कि हम्म मैं अपने 70 चुने हुए लोग लेके गया यहाँ से, और मैं उनको हम्म वहीं छोड़ आया, मार दिया हम्म उनको। तो क्या उन्होंने फिर इस्लाम कबूल करना है, अल्लाह की हम्म क्या बात माननी है, उन्हें तौरा को क्या मानना है? तो इन्होंने दुआ हम्म की, तो फिर अल्लाह ताला ने इनकी दुआ की वजह से उनको, इनकी दुआ आती है कुरान में, उनको जिंदा हम्म कर दिया। हम्म और देन अल्लाह लिफ्टेड द माउंटेन ओवर द हेड। ठीक है। हम्म दे वर सेव्ड हम्म फ्रॉम द सी, दे वर गिवन मनो सलवा, बहुत कुछ था, बहुत कुछ। बस ये हम्म आखिरी आखिरी अभी जो है ना उनका आ रहा है, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो जाएगा। ठीक है। हम्म यानी हम्म मुसलमानों का सब शुरू हो जाएगा। अभी बनी हम्म इसराइल का है। सब सूरह आले हम्म इमरान में सारा इनका है, क्रिश्चियंस का है। यहाँ बनी हम्म इसराइल यहूद का किस्से हैं, और वहां पे सारे जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम की जो थी ना, क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियंस का और मुसलमानों का बीच में आ गया इब्राहिम। हम्म बहरहाल ये जो आप पढ़े ना सूरह बकरा, ये हेडलाइंस हैं। हम्म ये जैसे अखबार के हेडलाइंस होते हैं, इनकी डिटेल डिटेल बाद में पूरे कुरान में आएगी, डिटेल से बताया जाएगा मूसा इस्लाम का, हर नबी का डिटेल से बताया जाएगा बाद में। अभी सिर्फ हम्म सूरत बकरा में ये है कि किसको इसको पढ़ ले और उसको पता चल जाए कि अच्छा भाई क्या क्या है, काम है, ये टाइटल्स है। उसके बाद हम्म अबव देम, इफ इट क्या पढ़ेंगे यहाँ से, एज इफ इट वर अ डार्क As if it क्लाउड। was a dark cloud, and they were certain that it was going to fall upon them. They were told to take what was given to them with full force. ठीक है, सही है।
तो मकसद सारा ये था कि फुल फोर्स से उनको कहा जाए कि तुम पढ़ो। क्योंकि मान मान नहीं रहे थे, नहीं कहते अल्लाह को दिखाओ, तो फिर अल्लाह ने फिर एक थंडर आया और उन सबको मार दिया, तो मर गए। हम्म और बाकायदा मरे थे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं उनको हमने दोबारा जिंदा किया, मुर्दों को ही जिंदा उनकी किया दुआ गया के बाद। दुआ के हम्म बाद। तो फिर उन्होंने हम्म कहा कि फिर अल्लाह ताला ने, फिर भी नहीं मान रहे थे ना, तो फिर माउंटेन आया। अच्छा, हम्म खुजू क्या है? ये आपका फेल अमर है। Hamza khaza from akhaza, take. टेक, खुज होता है टेक, खुज हाजा, टेक दिस, Hmm. खुज हाजा। तो खुद से खुजू, तुम सब लो। ये एक इसमें अंता जमीर है और इसमें अंतुम जमीर है। सही है। Hmm. दो आदमियों को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अलिफ लगा देंगे ना। Hmm. खुज खुजा। लड़की को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? खुजी, Hmm. है ना, खुजी। याद ता ही नहीं रख। लगाएंगे? नहीं, नहीं। ये या है ना, अच्छा। ये खुजी है। ठीक है ना। तो ये ता खुजीना से बना हुआ है ना। तो जब चॉप करते हैं तो अलामत मुजारे भी गिर जाती है, और आखिर में या के बाद एक नून होती है, वो भी गिर जाती है ना। ता हम्म। खुजीना। तो फिर पीछे यही ठीक रह है। जाता है, खुजी हम्म। रह। अच्छा, ये स्पेशल है ना, मैंने बताया मुर, खुज, ये स्पेशल है चार। कुल। कुल, कुल। ये हाँ, ये तीन जो है ना, ये स्पेशल है, ये फेल अमर की तरह नहीं बनते। हम्म यानी चॉप तो होते हैं आगे पीछे से, लेकिन बाद में हम शुरू में जब नहीं पढ़ा जाता तो हमजा ऐड करते हैं ना। हम्म तो इनका हमजा उल्टा गिरा देते हैं, जो होता है वो भी गिरा देते हैं, कि उनके रूट वर्ड हम्म में हमजा आता है। हम्म तो वो हमजा जो होता है, वो हम उसको भी गिरा देते हैं, तो खोज रह जाता है। हम्म। बना के देखना अगर ना समझे, जब ये सुनेंगे ना दोबारा तो बना के। जी मैंने कितनी दफा बताया हुआ है आपको। जी जी, याद है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपके लिए तफसीर तो एक दफा भी पढ़ लें। अब देखिए यहाँ कितनी शॉर्ट तफसीर है ना। हमें सिर्फ हम्म कुरान का मैसेज लेना है, कुरान में क्या मैसेज है, हमें तफसीर डिटेल से नहीं पढ़नी, कि बहुत सारी तफसीर पढ़नी, ये पढ़ लिया लेकिन अमल में जीरो है। हमें ये पता जी। करना है पढ़ के कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। हम्म डूज एंड डोंट्स का पता चलना है, और उसको हमने अपनी जिंदगियों को संवारना है। जब हम लंबी लंबी तफसीर में, उन चीजों में और नोट्स बनाने में, इन चीजों में चले जाते हैं ना, हमें कंस्ट्रक्शन देखना है कि ये वर्ड कैसे बना हुआ, ताकि हम खुद तर्जुमा कर सकें, ताकि हमें कुरान से मोहब्बत हो। कुरान से दो लोग क्यों भागते हैं? लोगों से रट्टा नहीं लगाया जाता। हम्म ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका रूट वर्ड जो है हमजा ता या है। अब इससे हम्म दो वर्ब बनते हैं। एक बनता है सिर्फ ये एक उसके साथ, ठीक है ना, अता। और एक बनता हम्म। है दो हमजों के साथ। ये बाबे हमजा तो, फाल वाला। हाँ हाँ, ये तो उसका रूट वर्ड है ना हमजा। ये हमजा तो हम्म रूट वर्ड है, तीन ही लेटर है ना। जब माजी में तीन लेटर होते हैं, मुजारे में या ती आता है, ऐसा ही होता है ना। हम्म। जी। अब ये वाला क्या है? ये दो हमजे हैं। देखिए, आपने देखिए, हम्म एक हमजा साकिन है और एक हमजा है। एक हमजा तो हम्म रूट वर्ड का है, और एक एक्स्ट्रा बाबे फाल का भी है। हम्म तो ये आ ता बन जाता है फिर, दो हमजों के साथ। हम्म सही है। आ ता बन जाता है। ये अता है, अता। और ये आता है। आता का मतलब है देना, देना। और अता का जी। मतलब है आना। ये हम्म ऐसी है जिसका अता करना मानी होता है ना। हम्म हमने अता किया, हमने दिया तुम सबको, वी हम्म गेव यू ऑल। तो ये वाला यहाँ पर आ रहा है दो हमजों वाला। जैसे ही आप देखेंगे माजी में सिर्फ एक ही हमजा आ रहा है, तो वो उसका मतलब आना होगा। और अगर उसके हम्म बाद बी भी लगा हो, तो फिर उसका मतलब लाना हो जाता है। हम्म सही है। ये मैं हम्म। इस वाले के बारे में बात कर रही हूँ, जो जी। सुलासी मुजरद से है। ये तो हम्म मजीफी बाबे फाल से है। बाबे ता फाल। यू, अब इसमें चार लेटर आ गए ना। तो यहाँ पे तो आपने हम्म जबर डाली थी अलामत मुजारे पे, यहाँ पर आपने क्या डालना है? पेश डालेंगे अलामत मुजारे पे। ठीक है, क्योंकि चार जी। लेटर आ गए। तो ये हम्म मजहूल नहीं बन जाएगा,
युति, अब आप क्या करेंगे, हमजा नहीं हम्म। लिख सकते यहाँ पर आपको, क्योंकि हमजा आप लिखेंगे ना तो पढ़ा नहीं जाएगा। आपने पेश आ रही है तो वाव लगाना होगा आगे। वाव लगाएंगे जी। और ये दूसरा वाला जो हमजा है ना, इसको आपने कुर्सी पे बिठा देना है, उसको आप गायब नहीं कर सकते। दो हमजे है ना, युति, हम्म। आता युति, ये युति यू होता है लेकिन पढ़ते युति। तो इसमें ये चार लेटर है। अब ये वाला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुरान में इतना आता है, बार बार आता है। तो पता है आपको आना का मतलब कहाँ पे करना है और आतईना का कहाँ पे करना है। आतईना का मतलब अता करना, देना, और हम्म। आता का मतलब है लाना। अब आना के साथ अगर बी भी लग जाए अता के साथ तो लाना हो जाता है। ठीक है ना, ये जी। मतलब है। जैसे जहाबा का मतलब होता है जाना, और जहाबा बी का क्या मतलब होता है, अगर जहाबा के साथ बी भी लग जाए, लाना। ले जाना। हम्म। जहबल्लाहु बी नूरिहिम, तो अब यहाँ पे क्या है, अल्लाह गया नहीं, अल्लाह ले गया। ले। अल्लाह, इसका मतलब है जाना, खुद जाना, वो चला गया हम्म। है, ये लेफ्ट। जहब बी का मतलब है कि ले गया, यानी वो किसी और को भी ले गया है। अल्लाह की जरूरत नहीं। अब यहाँ जहब अल्लाह बी नूरी में तो अल्लाह का नाम आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने अल्लाह का नाम लिया है। जहबी का मतलब है कि वो ले गया, यानी वो खुद तो गया ही गया लेकिन साथ किसी और को भी ले गया। ठीक है। हम्म। हम्म। जहबा बी, वो एक स्टोरी भी आती है ना, तो उसमें वो दो लड़कियां होती हैं, जो यंग माएँ होती हैं, बच्चे होते हैं उनके साथ, और उनको दरख्त के नीचे लिटाती हैं, फिर काम करने जाती है ना खेतों में। हम्म। तो वापस आती हैं तो हम्म। एक का बच्चा गायब होता है। एक बच्चा गायब होता है, उसको भेड़िया ले जाता है, और एक ही बच्चा वहां पड़ा होता है। अब वो दोनों लड़ती हम्म। हैं, तो कहती है तुम्हारा बच्चा जहबा बी, तुम्हारे बच्चे के साथ गया, भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया। तो मीनिंग क्या हो अच्छा। गया, जहबा बी हम्म। तुम्हारे बच्चे के साथ गया है। तो हम्म। वहां पर बी का लफ्ज आता है, तुम्हारा लेके हम्म। जाने का मानी, यानी भेड़िया क्या है, भेड़िया तुम्हारे बच्चे को लेके गया है। तो हम्म। जहबा बिबनी वहां पे आता है, तुम्हारे हम्म। तुम्हारे। फिर दूसरी कहती है नहीं, तुम्हारे को, तुम्हारे को। फिर ये किस्सा ये कहाँ पर जाता है, ये इंसाफ के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। फिर वो फैसला करते हैं, वो जिसका बच्चा नहीं होता उसके हक में फैसला कर देते हैं, हम्म। जिसका बच्चा होता है उसके हक में नहीं करते। ये पहले मैंने हम्म। बताया। मेरे ख्याल है आपने बताया हुआ, मैंने सुना हुआ तो है। सही है। आपने ही बताया होगा। फिर वो रास्ते में आती हैं तो वापस आ रही होती हैं, तो उनको सुलेमान अलैहिस्सलाम मिल जाते हैं, उनके बेटे। हम्म। फिर उनके सामने हम्म। मुकदमा पेश करती हैं, तो वो कहते हैं, नौकर को कहते हैं छुरी ले आओ जरा इधर, इस बच्चे के दो टुकड़े हम्म। करता हूँ। दोनों को आज लड़ाई कर रही है ना, दादा। हम्म। तो जिसका बच्चा होता है वो बोलती है नहीं, बच्चा जो है ना इसी का है, मेरा नहीं है। हम्म। जिसके बारे में दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया है, नाहक हम्म। फैसला किया था ना उन्होंने। जी जी, तो वो दूसरी। बड़ी की, हम्म। जिसका बच्चा नहीं था उसके हक में, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चा उनको इसी दे का दो। है, मेरा बच्चा नहीं। तो वो समझ गए कि यह असल माँ है। हम्म। उन्होंने छुरी मंगाई इसलिए थी हम्म। कि जो असल माँ है वो बोल पड़े। दूसरी माँ तो बोली कि ठीक है भाई, कर दो टुकड़े, मुझे क्या है ना। दूसरे का। हम्म। हाँ, दूसरे का। तो इसमें बहुत सारे लेसन है। तो देखिए, अब वो छोटे थे अभी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बेहतर फैसला करने की तौफीक दी। तो बात दफा बच्चों की बात भी जो होती है ना, बड़े काम की बातें होती हैं। बच्चों को बच्चा समझ के, नहीं तुम्हें क्या पता है ना, तुम तो जी। छोटी हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो घर में भी सबसे छोटी हो। ऐसे नहीं करना चाहिए। हर एक की बात सुने फिर अपना डिसीजन ले। बाज़ दफा छोटे बच्चे भी हम्म। बड़ी अच्छी बातें कर जाते हैं। अल्लाह ने हर एक को ये कुछ ना कुछ दिया होता है ना, अकल दी जी। अक्ल दी हुई इत्यादि को। हम्म। हम्म। तो बिकुवतिन हम पढ़ चुके हैं, फुल फोर्स। ठीक है, फिजिकली भी होती है और इंटेंट, इसका मतलब क्या है, टेंजिबल। जो मेजर कर सके ना, मेजरेबल, और कुछ होता है ना जो आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, डिटरमिन कर। इंटेंजिबल वो होते हैं। हम्म। यही जो क्वांटिफाई हो सकते हैं, जो क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं आप। सही बात है, चलिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे क्या है, यहाँ से पढ़े, ऐड हियर। अनि। Adhere to the book firmly, carry out the commands with determination, proper implementation of the book, and abiding by it.
किताब को मजबूती से पकड़ना, इसका क्या मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे? यानी फिजिकली भी उसको मजबूती से पकड़ना है, उसके अंदर जो लिखे हुए हैं काम उनको भी पकड़ना है, अपनी डिटर्मिनेशन दिखानी है उसमें। हम्म कैरी आउट द कमांड्स विद डिटर्मिनेशन, प्रॉपर हम्म implementation of the इम्प्लीमेंटेशन book करना, and abiding by it. Yeah. अबाइडिंग बाय इट। हम्म तो ये है कुवा का मतलब, ये नहीं कि बस गिरे नहीं हाथों से, ख्याल से पकड़ना। हम्म गिर जाए तो ऊपर रख कोई दो। नहीं है, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं ना कि उस पर अमल ही नहीं कर रहे। हम्म इज्जत इत्तराम एक जगह है, हम उसको ऊपर रखते हैं, पीठ ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे नहीं करना। इसको बेड बुक हम्म साइड बुक बनाए, इसको पढ़े जब टाइम मिले, दो हम्म मिनट भी मिले ना, गाड़ी में भी रखें। अब तो पारों में आ हम्म गया ना सब कुछ, अभी तो सेलफोन में आ हम्म गया ना। जी जी। तो एक ऐप ऐसा रखें कि आप फौरन उसको खोलें, आप जहां से मर्जी आप पढ़ लें। कुछ थोड़ी दो हम्म आयतें भी पढ़ने का, अगर स्टॉप साइन पे या कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा, आप रुक हम्म गए हैं हाईवे पे या कुछ, तो उसको निकाल के पढ़, बजाय फजूल रोने के कि ये क्या हो गया और वो क्या होगा, अब तो इतना टाइम लगेगा और हम्म तो, है ना। उसका हम्म कोई फायदा नहीं है, हो सकता है आपकी उस पढ़ने की बरकत से वो खुल जाए रास्ता। कभी होता हम्म, है ना, फंस जाते हैं जी। ट्रैफिक में, कोई आगे एक्सीडेंट हो जाता। इतनी अच्छा, अच्छी आदत बन जाए अगर ऐसे ही कर लें। यही करना है, हम्म यही करना है। बाजार में इंशाल्लाह। जाएं तो देखें, अगर आप बाजार में जाके चौथा कलमा पढ़ लेते हैं ना, उसका इतना अजर है, लेकिन कौन पढ़ता है बताएं। मैं खुद जाती हूँ, मुझे याद नहीं, घर में मैं पहुंचती हूँ, मुझे याद आता है वो चौथा कलमा पढ़ ली, क्योंकि बचपन से आदत नहीं बनी, हम्म नहीं बनी, माँ बाप को पता ही नहीं था, अब हमें पता लगा तो अभी हम अपनी आदतें बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी तो फिर हम्म प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जी। हर दफा आप सोच के जाएं, अभी तो इतनी आदत बनी है कि चलो भाई बैठते कोई दुआ पढ़ ले, गाड़ी में हम्म बैठते बिस्मिल्लाह पढ़ लें, घर से निकलते ही बिस्मिल्लाह तो कर। अब बाजार में तो इतनी, क्योंकि इतनी रौनक होती है, इतना कुछ होता है कि इंसान भूल जाता है सब कुछ। भूल जाते हैं जी। सही है ना, लोग होते हैं, बिल्कुल आप ट्राई कर लें, भूल जाएंगे आप। हम्म हम्म और उसको पढ़ लें तो 70,000 फरिश्ते जो हैं वो आपके लिए दुआ करते हैं, इतनी ज्यादा हम्म दुआ है, सुबह से शाम तक। ये छोटी छोटी नेकियां जो आखिर में बहुत काम आएंगी। तो चौथा कलमा हम्म क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला अलहम्दुलिल्लाह। कुल्ली शैइन कदीर, बस इतना ही है। हम्म हम्म इतना ही पढ़ना है, और ये बाजार में पढ़ना है जो हमें याद ही नहीं रहता। हम्म मैंने कितनी बार मैंने कहा आज तो जरूर जा रही हूँ पढ़ूंगी, घर आगे याद हम्म। तो फिर नहीं पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा। शैतान भी भुला देता है, शैतान छता, भी सोचता है अच्छा ना पढ़ूंगी। हाँ वहां इतना कुछ होता है मार्केट में कि आप सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं जी। ठीक है। एक चीज याद रहती है कि बाहर आए तो कुछ खा लें बाहर से, बस और कुछ नहीं होता। हम्म तो वो होता है, या कोई शॉपिंग कर लो या कुछ कर लो, वो भी। अच्छा चलें, अब यहाँ पर क्या हुआ, फर्मली कैरी सब कमांड्स उसके लेने हैं डिटर्मिनेशन के साथ। और यहाँ पर क्या है, प्रॉपर फॉलो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, करना है। इम्प्लीमेंट भी करना है। अबाइडिंग बाय इट क्या है? ये नहीं, इसको फॉलो करना है ना, जो आपको इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं उसके साथ उनको फॉलो करें। अच्छा जी, अब हमारी आ गई वस्कुरु माफी ही लकुम तहतदुन। अब मुझे इसका बताएं जरा, वस्कुरु क्या है, मीनिंग क्या होगा? अब मैंने मीनिंग आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछने हैं, खुद तर्जुमा करें। वाव का मतलब एंड, एंड उज़कुरू जिक्र करो। जिक्र करो, तुम सब जिक्र करो, फाइल भी बताना है ना। हम्म फाइल किधर है इसमें, ये वाव फाइल है। वाओ यू ऑल। यू ऑल जिक्र करो, हम्म माफी हम्म ही जो उसके अंदर है, जो कुछ भी माँ हम्म का मतलब है जो कुछ भी उसके अंदर है, और हम्म उसका जिक्र वट करो। एवर। लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि ताकि तुम, ताकि तुम ताकि क्या तुम। हो, परहेजगार बन जाओ। तो किताब को हम्म भेजने का मकसद क्या है, अमल का मकसद क्या है, तकवा हमारे अंदर आ जाए किताब को पढ़ हम्म के। तकवा तभी होता है हम्म जब आपके पहले तो आपको डूज एंड डोंट्स पता हो, फिर उन पे अमल हो, तभी तकवा आता है, वरना नहीं आता। जी। पहले तो पता हो ना कि ये गलत है ये सही है, जब आप उस बुरे बुरे काम से बचेंगे। हम अच्छे पे अमल कर रहे हैं कर लेते हैं, बुरे से नहीं बचते, ये भी होता है ना। जी। डूज और डोंट्स है ना, तो डोंट्स जो हैं उनसे तो हम बच जाते हैं, या डूज हम हम्म कर लेते हैं और डोंट्स से नहीं बचते। उनका भी हम्म हमें पता होना चाहिए, और क्या क्या डोंट्स हैं, अल्लाह ने किस किस काम से मना किया हुआ है। हम्म
ठीक है। मर्दों को भी जी। पता होना चाहिए, औरतों को भी, दोनों साइड पता होनी चाहिए सबको, तभी जाके जिंदगी हम्म। होती। अब मसला ये जी। होता है कि औरतें तो तकवा कर लेती हैं, मर्दों में नहीं आता, मर्दों ने पढ़ा हम्म। ही नहीं, फिर अब क्या होता है, हम्म। क्लैशेस होते हैं। हम्म। कितना वो सब्र करेंगे, क्या होगा, नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का जरूरी तरबियत है। पे तवज्जो देनी चाहिए बच्चों की तरबियत पे ना, ताकि वो शुरू से ही अच्छे हों। हम सिर्फ तालीम पे तवज्जो देते हैं, हम्म। तालीम और तरबियत हम्म। दो चीजें लाजम मलजूम है। हम हम्म। सिर्फ तालीम पे, कि तालीम अच्छी हो जाए बस, तरबियत हम्म। गई भाड़ में, हम्म। तो वो फिर एक शाकला बनता है, वो सारी जिंदगी साथ चलता है, जो भी अच्छा बुरा बाद में बन। फिर हम कहते हैं करते हैं नहीं, और फिर बाद में रोते हैं कि जी वो ऐसे नहीं कर रहे, वो वैसे नहीं कर रहे। टाइम हम्म। देना पड़ता है बच्चों को। हाँ, तालीम के साथ साथ तरबियत, तालीम तो बाहर से मिल जाती है, कोई मसला नहीं है, स्कूल हम्म। फीसें दे, दिन चले गए। तरबियत तो आपने हम्म। खुद करनी है, और माँ ने करनी है, बाप का भी है, बाप का भी है। ये हम्म। नहीं कि माँ हम्म। तरबियत कर रही है और बाप जो है कह रहा है कि क्यों नमाज के लिए उठाती हो बच्चों को, मेरे बच्चों पे जुल्म। हम्म। यहाँ पे ऐसा हम्म। वाकया हो चुका है मेरे पास में। हम्म। वो छोटे बच्चे थे उसके, तो वो नई नई कुरान की तरफ आई, अलहुदा में स्टूडेंट थी मेरी। तो हम्म। उन्होंने उसने बच्चों को कहा कि वही 6 साल की उम्र से जैसे आदत डालते हैं ना बच्चों को नमाज की, तो हम्म। उसने सुबह उठाना शुरू किया बच्चे को, तो बाप की नींद डिस्टर्ब हुई, और वही बच्चा भी डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा रोया, मैंने नहीं उठना है, सोना है, होता ही है ना थोड़ा। तो जी वो जी। कुछ दिन तो वो देखता रहा, फिर उसने आखिर पुलिस बुला ली कि मेरे बच्चों पे अच्छा। जुल्म हो रहा है, मेरी माँ, मेरी बीवी जो है। तो अच्छा। वो दीन पे नहीं था ना, बिल्कुल भी दीन पे नहीं था। तो बीवी जो है वो हम्म। आ गई किसी तरीके से दीन की तरफ, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी। तो उसने अपने हम्म। बच्चों, तो वो फिर उसको पुलिस ने शेल्टर में भेज दिया। अच्छा। शेल्टर से बेचारी पुकार रही कि मेरी मदद करो, यहाँ बहुत बुरी औरतें हैं, और मैं कहाँ आ गई हूँ, एक तो मैं मुसलमान हूँ, ऊपर से मुझे सब पता है अच्छा बुरा। तो हम्म। फिर इतनी मुश्किलों से वो कहीं, जब उसको खूब बच्चों ने तंग किया ना, छोटे छोटे बच्चों ने, तो फिर कोई उसने बीच में किसी को डाल के जाके उसको निकाला, लॉयर वगैरह हम्म। को। तो कितने पैसे खर्च हुए हम्म। होंगे, जो भी हुआ होगा। तो अपने मुसीबतें खुद ही क्यों बनाते हो अपने ऊपर। कितना गुना मिला होगा उसको इस बात का। हाँ। तो कितने दिन उसने शेल्टर में गुजारे, बेचारी इतना रोती थी, क्योंकि मेरी स्टूडेंट थी ना। हम्म। डॉक्टर फरत हाशमी को बोले मुझे निकालें, उनके हस्बैंड को बोले मेरी हेल्प करें। तो मैंने मैसेज हम्म। तो दे दिया था उनके हस्बैंड, मैं उनके साथ ही उस वक्त काम कर रही थी, तो मैंने कहा इस तरह एक लेडी है, कहते हम करते हैं कुछ, क्योंकि हमारी स्टूडेंट है ना, हम्म। वो बेसिकली तो हमारी स्टूडेंट है, ग्रुप में आपके है। हम्म। तो फिर उन्होंने हम्म। उन्होंने भी कुछ किया शायद। अब मुझे नहीं पता हम्म। लगा आखिर में क्या हुआ कि उसको, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हुई उस बेचारी से फिर, वो इतनी डर गई, या हम्म। उसको हस्बैंड ने मना कर दिया कि तुम नहीं करोगी अब यस। वो डर गई ना कि मैं शायद, यही होती है ना, आप इस्तकामत नहीं होती है आपको फिर। जी। कोई उसने धमकी दी होगी कि खबरदार तुमने अभी ये सब किया आइंदा, तो डर गई हम्म। होगी। तो बहरहाल फरत नाम था उनका, मुझे अभी तक याद है। अच्छा। उसका नाम भी फरत ही था, डॉक्टर फरत आजमी। अल्लाह उनकी हेल्प करें किसी तरह। हाँ। अभी मुझे नहीं पता, कई दफा उसकी मैंने आईडी देखी भी है, पता नहीं। वो कह रही थी कि मुझे मुझे ये भी कह रही थी कि अपने हस्बैंड को बोले, मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं, वो तो दुबई गए हुए हैं, तो मैं कैसे हम्म। तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, अगर होते तो मैं जरूर करती। और हम्म। इन चीजों में फिर बहुत मुश्किल है, डर भी लगता है ना, लॉज हैं यहाँ के, हम्म। तो आपके खिलाफ ही हो जाए, उसका हस्बैंड कुछ हो जाए। तो बहरहाल मेरे हम्म। हस्बैंड तो थे ही नहीं, फिर मैं डॉक्टर प्रताशन के हस्बैंड को कहा आप ये हेल्प कर सकते हैं उसकी तो करें। तो कहते हैं हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेसिकल तो हमारी स्टूडेंट है। हम्म। सुमा तवल्लई तुम मिन बादी जालिक, फिर क्या है, फिर गए तुम इसके बाद। तो फिर एक दफा वो जब पहाड़ ऊपर आया तो उन्होंने कर लिया सब कुछ। सुमा का मतलब पता है ना आपको। हम्म। फिर फिर। एक सम्मा भी होता है, सम्मा भी आप कुरान में पढ़ेंगे, ठीक है। सुमा और सम्मा में फर्क है, ये जर्फ है, और ये क्या है, ये हरफ अतफ है, ये वाव की फैमिली से है। तवल्लई तुम, मुंह मोड़ लिया, तो तवल्ला का मतलब होता है मुंह मोड़ना, मुंह, ठीक है। हम्म। तवल्ला,
تا کے ساتھ باب ہوں تفاعل بن رہا ہے نا. تو ایک ہوتے ہیں واللہ، جیسے اللہ ماں ہوتا ہے نا، اللہ ماں یو علمو ہے نا. ہوں اور اس کا تو بنے گا نا تفیل کے وزن پہ، تولیتن ہوں بنے گا نا، اس کا مصدر تولیتن. لیکن یہ ہوں تولا ہے، یہ تا اللہ ماں کی یہ طرح ہے. ولی، ولی کے اس سے نکلا ہے. ولی سے روٹ ورڈ وہی ہے. ولی ہوں بھی کیا کرتا ہے، لوگوں سے منہ موڑتا ہے نا. ہوں اللہ کا ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا، سب سے منہ ہوں پھیر لیتا ہے نا. تو پھر منہ ہوں پھیر لیا تم نے، موڑ لیا یا پھیر لیا، ایک ہی بات ہے. من بعدی ذالکا، اس کے بعد، یہ سارا ایک ہی ہے. فلولا، تو کیوں نہ. آگے پڑھیں گے بعد میں، اس کو پڑھیے، ابھی میننگ کرنے خود. ولی منہ پھیر لینے والے کو کہتے ہیں. جیسے اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب شادی کے لیے کہتے ہیں نا کہ شوہر کو ولی بنایا گیا ہے نہیں بیوی کے لیے. نہیں، وہ ولی الگ ہے نا، وہ تو اچھا گارڈنر، وہ، وہ ہے نا اچھا گارڈین. اچھا ولی کا مطلب مددگار بھی ہے نا. اچھا صحیح. تو گارڈین کون ہوتا ہے؟ مددگار ہی ہوتا ہے. ہوں ولی دوست کو بھی کہتے ہیں نا، دوست سے بڑا کون مددگار اس ہوتا ہے کو بھی بتائیں، کہتے ہر ہیں مشکل جی وقت میں، جی. ہے نا. ہوں تو پھر اسی سے ولی جو ہے ولایت، وہ جو آپ کے والد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ولی. ہوں اور لڑکی کی شادی میں ولی کا ہونا ضروری ہے. ہوں صرف ایک صورت میں ولی نہیں ہو سکتا، اگر وہ دنیا میں نہیں ہے. ہوں پھر اس کا ماموں یا چچا، اور عورت کبھی ولی نہیں بن سکتی. یہ مسئلے پتہ ہونے چاہیے. ہوں اور بغیر ولی کی شادی بہت بڑا گناہ ہے، جو لڑکیاں گھر سے کر لیتی ہیں نا بار بار، ہوں بغیر ہوں ولی کی اجازت کے، وہ ان کا شادی شمار ہی نہیں ہوتی وہ. ہوں صحیح ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. وز کرو اینڈ آل ریمبر، آل یو ریمبر. پڑھیں. Um, and all you remember, what fihi in it, la'allakum, so that you tattaqun, you adopt taqwa. شاید کہ Oh. تم کیا ہو، اڈاپٹ کر لو تقوی کو. شاید تمہارے اندر. تو کتاب پڑھ کے انسان کے اندر تقوی آنا چاہیے. تقوی تبھی آتا ہے جب آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ ہوں اور ان پہ آپ عمل بھی کریں. صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. وَاذْكُرُوا کا مطلب ہے یاد کرو، یاد کرو. یعنی جو کچھ اس کو اندر لکھا ہوا ہے ہوں اس کو یاد رکھو. زندگی کے اندر دکان پہ بیٹھے ہو نا، تو ڈنڈی نہیں مارنی، یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. ہوں صحیح ہے. جی. اس وقت بھی صرف نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرنا، دکان میں، بازار میں، ہر جگہ، کلاس روم میں، باہر، ہر جگہ پہ اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کی کتاب کے اندر جو احکام ہے ان کو یاد رکھنا ہے. صرف مسلح پہ نہیں کہ اللہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اگر ادھر ادھر دیکھوں گی یا کسی سے بات ہوں کروں گی تو میری نماز خراب ہو جائے گی. وہ نہیں ہوں ہوگی، اس میں کوئی نہیں ہونا. آپ بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کا ہوں بچہ بہت رو رہا ہے، خاص طور پہ بچے نماز کے ٹائم بہت روتے ہیں. ویسے ہوں کھیل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز کا ٹائم میں شیطان ان کے وہ اندر ڈر. دیکھتے ہیں. آپ اس کو اٹھا، اب یہ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی یا لیٹ کر. ہوں آپ بچے کو اٹھا ہوں لیں، جب سجدہ کرنا اس کو بٹھا دیں اور پھر اس کو اٹھا لیں. ہوں آپ کا دروازہ بیل بج رہی ہے، باہر کوئی سردی میں، سنو میں، ٹھنڈ میں، گرمی میں، آپ جائیں، چپ چاپ جائیں، بات کیے بغیر دروازے کو کھول لیں اور واپس آ کے مصالے پہ کھڑے ہو جائیں. آپ کا ہوں چولہا جل رہا ہے، آپ کو یاد نہیں رہا، اول تو یہ ساری چیزیں پہلے ختم کر کے کریں نا. ہوں چولہے کو جا کے بند کریں کہ ایسا نہ ہو آگ لگ جائے یا جل جائے کھانا. اگر آپ کا ہوں ایک کوارٹر کا بھی نقصان ہو رہا ہے نا، تو آپ اپنی ہوں نماز کے اندر جا کے بچہ آپ کا بیڈ سے گرنے لگا ہے، اب وہ ہوں گر جائے تو، ہے نا، کیا جی. کریں؟ آپ اس کو ہولڈ کر لیں جا کے، لیکن ہوں بات نہ کریں. ایون ہوں سلام کا جواب بھی آپ نے نہیں دینا، ہوں کچھ نہیں کرنا. ہوں تو یہ باتیں ساری. تو ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا، آگے پڑھیں بیٹا. پھر دین، ثم Summa then tawallaytum, you all turned away, from Badi after Zalika, that Falola, then if not. بس کرو کا میننگ
Uh, what's Guru ज़ात Zalakafrat? Zikr is to remember something done through the hearts, mouth, limbs, recite it with the tongue, and prove through actions, live by the book, act in accordance with the book, reflect and recite it. हम्म। Um, देखिए, रिसाइट विद द टंग, बस गुरु का क्या मतलब है? रिसाइट विद द टंग एंड प्रूव थ्रू एक्शंस, ये जिक्र का मतलब है। जी। लिव बाय द बुक, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द बुक, रिफ्लेक्ट एंड रिसाइट इट। आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, एक मोमेंट के ऊपर पता चलना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब पढ़ा हुआ है। तकवा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, नरमी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। आज तक सूरह लुकमान में उन्होंने जो बेटे को नसीहतें की हैं, इंशाल्लाह मैं वो पढ़ाऊंगी आपको अलग से भी। अरबी का वो है एक, तो उसमें अलग से अरबी भी आपको आ जाएगी उसमें पढ़नी, और वो बिल्कुल आसान है, हम्म। उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, माँ का मतलब है ऑल ऑफ दैट विच इज इट, कुछ छोड़ना नहीं। मैंने हम्म। बताया माँ जो होता है मदर की तरह होता है। हम्म। मदर क्या करती है? सारे बच्चों को लपेट के रखती है, जोड़ के रखती है, पूरी हम्म। फैमिली को जोड़ के रखती है। सही है, हम्म। किसी को इधर उधर नहीं निकलने देती। जैसे मुर्गी होती है ना, बच्चों को सबको हम्म। समेट के परों के नीचे करके रखती है। तो माँ का हम्म। मतलब है ऑल ऑफ दैट, नॉट द। और ये इसम मौसूल है, ये अकेले इसका कोई मानी नहीं होता, इसके साथ ये भी मिलेगा। बस करो मा तत्तकून, मफूल यही बनेगा, लेकिन अकेला नहीं बनेगा, इसको भी साथ मिला के। फेल और हम्म। फाइल है ना, तो ये सिला बनेगा, मा सिला प्लस सिलतुल मौसूल, है ना। हम्म। ये सिला हम्म। है, इसम मौसूल है, और ये सिला सिला है। इसम मौसूल और सिला, ये दोनों चीजें हम्म। मिल के इसका मफूल बनेगा। हम्म। मा तत्तकून, पढ़े तत्तकून का मीनिंग पढ़े। Tattaqun, you develop fear of Allah. You may save yourselves from disobeying Allah and from difficulties in this dunya and punishment in the hereafter. The Quran is the answer. द कुरान इज द आंसर, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, द कुरान इज द आंसर? Um, यानी वहीं से रहनुमाई लो हर चीज की, वो कुरान में ही है ना, जो लेनी कुरान में कहा गया है। लेनी लेनी ही वहीं से है। हम्म। बुक ऑफ गाइडेंस है ना, हम्म। यानी जब भी आपको कोई डिफिकल्टीज आए, उनको हम्म। आपने वहां से जाके आंसर लेना है, उसको हम्म। कुरान से लेना है। फिर आगे क्या है? आंसर आपको कुरान से मिलेगा और सुन्ना से मिलेगा। सुन्ना में उसकी हम्म। डिटेल है, और कुरान में लेकिन बादफा सामने वाले डिटेल। अगर वो चीज फॉलो नहीं करें, जैसे आप कुरान की रहनुमाई में कोई चीज कह रहे हैं कि भाई इसका ऐसे होना चाहिए, वो सामने वाला नहीं माने, फिर क्या करें? मसलन मिसाल दें। मतलब जैसे अब होता है ना कि ये आप मियाँ बीवी के भी जो लड़ाई झगड़े होते हैं, अब आप किसी को बोलें कि भाई अच्छा तुम इस तरह कर लो, मतलब कुरान में ये कहा गया है कि बस थोड़ा पेशेंस दिखाओ या सब्र करो, आपस में पैचअप करो, घर खराब हम्म। नहीं करो। अब लोग नहीं सुनते, कोई कोई प्रॉपर्टी पे लड़ रहा है, कोई किसी चीज पे लड़ रहा है, नहीं, तो फिर अब आप क्या उसको करें? डायरेक्टली ना कहें ना, इनडायरेक्टली बात करें। हम डायरेक्टली करते हैं, हम उसको आर दिलाते हैं, हम उसको यानी अटैक करते हैं हम उसके ऊपर। समझ आई है? हम्म। अटैक ना करें, इनडायरेक्टली बात करें। हाँ, जो भी होता है ना वो एक उसके यानी वाहज किसको कहते हैं, नरमी से कोई बात करना और उसको पता भी ना लगे, हम्म। ठीक है ना। तो आप अगर हम्म। डायरेक्टली कहेंगे और उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, तो जरा उसने भी होना है ना, ऑफेंसिव होगा ना वो, कि नहीं होगा? बताएं हम्म। मुझे। मर्द तो एक हम्म। ऐसी चीज होती है कि वो तो जो बीवी कहेगी उसका लट जाएंगे। उनके अंदर होता है कि क्यों हम इसकी बात क्यों माने, ये तो इसमें तो अक्ल ही नहीं है। हम्म। हालांकि ऐसा नहीं होता है। नहीं मतलब मैं तो दोनों को ही देखती हूँ ना, जैसे अगर आप, मैं आगे जो बच्चों की हुई हैं शादियां, उनको कभी बोलो ना आगे से, दोनों का ही मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता आजकल क्या सीन है। दो किसी में पेशेंस है ही नहीं, मतलब इतनी जल्दी लोगों के दिल भर जाते हैं, मैं तो हैरान हो जाती हाँ, हूँ कि यार ये क्या है। वो जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो नहीं, खत्म हो गई है। बिल्कुल जी, खत्म हो गई। कि ये मेरा कसूर है, उसको नजर भी आ रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और हम्म। जब कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर इस्लाह भी नहीं करता अपनी।
आप अपनी गलती नहीं मान रहे, आप दूसरे पे डाल रहे हैं उसकी गलती है, तो फिर हम्म, आप अपने आप हर को कोई कैसे बस सुधार, दूसरे को गलत समझ रहा है जी। तो सुधारेंगे कैसे? हम्म। फिर वो गलतियों पे गलतियां, उसको शय मिलती है मेरी, चलो ठीक है भाई, मैंने तो दूसरे पे हम्म। और गलतियां करता है। ये वजह बन रही हम्म। है सारी। हम्म। तो इसको तकब्बर भी कहते हैं, इसको अना और तकब्बर, ये दोनों चीजों में शामिल होती है। हक सही सामने बात है। आ गया लेकिन मान ही नहीं रहे, आपको पता है आपकी गलती है, आप नहीं मान के दे हम्म। रहे, मैं ना हम्म। मानू वाली बात ना। तो वो, हाँ, कुरान से दूरी भी है, जिनको मैं देखती हूँ ना इस तरह, वाकई उनमें ये है ही सिर्फ नहीं ना। अल्लाह का डर ही है, ये अल्लाह का डर ही है जो हम्म। बंदे को सीधा रखता है। जी। ये चेंज जो होती है ना, वो बाहर से नहीं आती है, आप किसी के अंदर चेंज हम्म। नहीं ला सकते। हम्म। कोई था, स्कॉलर था इनका, क्रिश्चियंस का ना, तो वो हम्म। उसने अपना इंटरव्यू दिया, वो कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की, मैं पूरी दुनिया को सुधारूं, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने हम्म। मैंने कहा अच्छा, मैं पूरी दुनिया को तो नहीं कर सका, मैं सिर्फ अपनी फैमिली को करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी नहीं कर सका, हम्म। क्योंकि वो लोगों को कर रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा, हम्म। मैं अपने उसको समझ जाए कि गलती कहाँ पे है, गलती ये है कि पहले मैं हम्म। अपने आप को सही करूं, अपने आप को सुधारो। अपने आप को सुधारूं। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो मेरी भी फैमिली भी सुधर गई, और मेरे लोगों को भी मेरी बात का असर होना शुरू हो गया। मेरी हम्म। बात समझ रही है? उस, जी। अब देखें, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरे बच्चों को बोल रहे हैं नमाज पढ़ो जरूरी है, जन्नत में जाओगे, ये करोगे, पढ़ेंगे, वो बोलेंगे आप हम्म। खुद तो नहीं पढ़ती हो। इस तरह झूठ की बात हम्म। है, इस तरह गीबत की बात है, सारी चीजें हैं ना। आप फैमिली में हम्म। करते हैं, वो नहीं मानते, आप गुस्सा करते हैं, आप उसको बोलते हैं गुस्सा नहीं करो, आस्ता बात करो, नरमी से करो, बच्चियों ऊंचा नहीं हम्म। बेलते। नहीं, पहले आपको काम डाउन होना पहले पड़ेगा। अपने आप को सही करो जी, सही बात है। ये जो मैंने आपको मिसाल दी है ना, इसको जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। हम्म। लोग ये नहीं कर रहे ना, उसको देखो, इतना उसने टाइम जाया कर दिया उसने अपनी जिंदगी का, स्कॉलर बना, सब कुछ किया, दुनिया सुधारने निकला, नहीं सुधार सका। हम्म। आखिर उसने हम्म। अपने आप को सुधारा तो सब कुछ सुधर गया। ये मैंने हम्म। इंटरव्यू खुद सुना है। हम्म। ये ये सेंस भी बनता है ना इस बात का, मतलब ये बात भी सही है कि आप पहले अपने आप को तो हर कोई, यही तो मसला है ना, लोग अपने आप को देख नहीं रहे, सब कोई कह रहा है उसकी गलती है, वो कह रहा है उसकी गलती है, भाई आप अपने आप को तो ठीक करें पहले। आई आपको जवाब मिल गया होगा ना अपनी बात का, हम्म। कहाँ पे गलती हम्म। है। अपने आप, जी। हर कोई देखे, हर कोई अपने आप को सुधार लेना, तो सब कुछ सुधर हम्म। जाएगा। हम्म। हम्म। अभी कोई बाप था, उसके पास बच्चा था, बेबी सिटिंग थी, और उसको तंग कर रहा था बार बार, उसको कुछ काम करना था अपना ऑफिस का या कोई, तो बच्चा था, उसने कहा कि इसको मैं कैसे अब तो हैंडल करूं। तो उसने एक पजल उसके आगे रख दी ना, पजल्स होती है ना बच्चों की, वो जोड़ते हैं और जी। बनाते हैं। हम्म। तो उसने कहा ये इसमें लग जाएगा और ये तो बहुत मुश्किल है और इसको देर लगेगी, तो मैं अपना काम कर। थोड़ी देर में ना बच्चा बना के ले आया। हम्म। उसने पूरी बना के खड़ा हो गया, उसने कहा ये लो मैंने बना दी है, 5 मिनट ही नहीं लगाए। हम्म। तो उसने कहा ये तुमने कैसे कर लिया, ये तो बहुत मुश्किल था, और कहते इसके पीछे एक इंसान बना हुआ था। हम्म। सामने जो पजल होती है ना वो डिफिकल्टी होती है, लेकिन उसके पीछे एक पिक्चर होती है ना पूरी। तो उसके उसने कहा देख इसके कर। पीछे इंसान बना हुआ, तो इस इंसान को मैंने जोड़ दिया, सीधा कर दिया, तो पूरी पजल सही हो गई, आगे व पीछे हम्म। वाली भी सही होगी। बात समझ आई है आपको? जी जी, मैं समझ तो गई जी। यही है, इंसान को सीधा होना है, खुद को हम्म। सीधा होना है। हम्म। ये एग्जाम्पल्स है ना, ये लोग अपनी हम्म। बताते हैं चीजें कि ऐसा है। हम्म। वो उसने इंसान, अब एक इंसान जब अपने आप को सीधा करता है, खुद को सीधा कर लेता है, तो पूरी दुनिया सीधी होती है कि नहीं होती, बताएं मुझे। जी। हम दूसरों को सीधा करने में लगे हुए हैं, यहाँ मुश्किल है। अपने। हर हम्म। इंसान अपने आप को सीधा कर ले, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा ले, अपने गुस्से को कंट्रोल कर, तो पूरी दुनिया में अमन और सुकून हो या जाएगा। सही हो जाए जी, सही बात है। फैमिली में ही कर लो, बाकी ना छोड़, बाहर को छोड़ो। फैमिली में हम्म। सुकून लाना है ना, तो हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले कि मेरे ये हुकूक है और मेरे ये फराइज हैं, हुकूक को छोड़ दे। हम्म। हम हुकूक की बात करते हैं, फराइज को भूल जाते हैं, उल्टा करते हैं। तो वो वहां पे भी गड़बड़ हो जाती है, फर्ज तो पूरे ही नहीं हम्म। कर रहे आप और हुकूक की बात कर रहे हैं, तो वो झगड़े हो हम्म। जाते हैं। तो अपने फराइज अदा करें, बस आपकी अपनी ड्यूटीज अदा करें, वो जो दूसरी चीज है ना वो आपको खुद ही मिल जाएगी, रिटर्न में हम्म। मिल जाएगी आपको। सही ये बात है। अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह कहते हैं वो हम्म। खुद ही मिल जाएंगे। झगड़ा कहाँ हम्म। शुरू होता है, जब सिर्फ हम हुकूक का मुतालबा करते हम्म। हैं, ड्यूटी देने को हम तैयार नहीं होते। जी। सही है ना, तो ये वाली हमारे अंदर गड़बड़े हैं।
اور یہی حکمت ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور ہوں کسی کو اگر وہ وعظ بھی کرنا ہے، جیسے آپ نے کہا کوئی سنتا نہیں ہے نا، تو وعظ ہوں وہی ہوتا ہے جو نرمی سے کیا جائے، حکمت سے ہوں کیا جائے. ہوں جو آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے کریں، پہلے آپ اپنے ہوں اوپر اپلائی کریں، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کی خیر خواہی دل میں لائیں، ٹھیک ہے، ہوں اور وہ اس سے پھر کام آگے ہوتا ہے. میں تمہاری، اس اگلے بندے کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے، میرا بھلا چاہتا ہے. ہوں اور سب سے ہوں اچھی خیر خواہی کیا کسی کے آخرت کو سنوار دینا. ہوں دنیا تو سبھی سنوار دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. کسی کی جاب نہیں تو چلو پیسے دے کے بزنس شروع کروا دیا، ہو گیا. اصل چیز ہے ہوں اس بندے کی آپ نے آخرت سنواری ہو، ہے نا. ہوں تو ایک بندہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، زندگی ہے، اور صحیح ہے نا، پڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کا کچھ سن کے تھوڑا سا اس کو ہدایت مل جائے، کوئی ایک، بہت چاہے بڑی آپ نے بات ہے. چھوٹا سا کلپ ہی ڈالا ہو، ہوں اس سے ہی اس کو ہدایت مل جائے، تو اس کی زندگی تو بدل گئی نا. ہوں بس کلک کرنے کی بات ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمیں ہوں کلک بھی ہوتا ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے بعد ہم وہی ہو جاتے ہیں پھر. ہوں خیر ہے نا، آخرت کس جی، نے دیکھی. آگے بڑھ جاؤ بس. آگے بڑھ جاتے ہیں. تولی تم کیا ہے؟ تولا مینس ٹو ٹرن اوے اور ریفرین فرام سم تھنگ، کسی چیز سے ہوں منہ موڑ لینا. ہوں تولا از ٹو فزیکلی ٹرن اوے. ورلڈ تولا کون سا ٹرن. باب ہے آپ کا؟ یہ وہ باب ہے. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ ماں، میں نے بھی آپ کو بتایا، اور ایک تعلمہ ہوتا ہے. تعلمہ یتعلم تعلم، یہ وہ والا ہے. یعنی یہ ٹرن اوے ایسے نہیں ہوتا بندہ اس باب کے اندر، جیسے تبسما یا تبسمو، تبسم، یہ وہ والا باب ہے. اس کو باب تبسم بھی کہتے ہیں، تبسم نام بھی رکھتے ہیں نا، مسکرانا. ہوں تبسما یا تبسمو تبسم. اب تبسم ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے تبسم. آپ کا کچھ ایفرٹ لگتی ہے نا مسکرانے میں، لگتی. آپ جی کا جی، موڈ نہیں ہے لیکن آپ کو بہت مسکرانا ہے، لگتی آپ ہے. تو ایفرٹ لگتی ہے. اس کام میں کیا ہوں ٹرن اوے ہونے میں بھی ایفرٹ لگتی ہے. اس میں ہر ایفرٹ باب، لگتی. ہر لفظ کا جو میننگ ہوگا نا، اس میں ایفرٹ ضرور ہوں ہوگی. ہوں جیسے تعلمہ یا تعلم تعلم، علم ایسے ہی آ جاتا ہے، ایفرٹ کے بغیر ہی آ جاتا ہے. نہیں آتا نا. جی. نہیں آتا. اس میں تکلف، تکلف کا معنی ہوتا ہے. تکلف کیا ہوتا ہے؟ تکلف، آپ کوئی گھر میں آئے تو آپ کہتے ہیں تکلف نہ کریں، ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوں تکلف اردو کا لفظ ہے، وہ بھی اسی باب سے ہے. ہوں آپ یعنی تکلف آپ ریفرین نہ رکھیں، اپنے آپ کو لے لیں. نہیں، آپ کوئی مطلب ایفرٹ نہ کریں نا، کوئی ایفرٹ نہ کریں. تکلف میں ایفرٹ اچھا. ہوتی ہے نا. ہوں ہوں. تو وہ اس کا مطلب ہے، یعنی ایفرٹ نہ کریں، بس بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا. ہوں تکلف پہ، اور تکلف کرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. آپ ہوں جو ہو وہی رہو. یہ نہیں کہ آپ آئے ہیں تو پڑوسوں سے برتن مانگنے ہیں، ادھر سے یہ صفائیوں میں لگے. نہیں، جو آپ ہیں وہ ہیں، ہوں ویسے ہی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی اپنے گھر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں تھوڑا بہت اگر اس کی ہوں خاطرداری کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ کر لیں، اس میں بھی ہوں تکلف نہیں کریں، کیونکہ پھر وہ آئے گا ہوں نہیں، ٹھیک ہے، ہوں دوبارہ نہیں آئے گا. تو صحیح آپ، بات ہے. ہاں آپ ایسے بھی رکھیں بلائیں کہ گے اگر وہ اتنا بھی تکلف ایزی کریں رہے گے. اور آپ بھی ایزی رہے، آپ بھی جی، دونوں. دونوں ہی دیں. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ پہلے تو ہم اس کی خوب داو خاطر دو، پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے تو اس کی غیبت شروع ہو جاتی. وہ نہ ہوں کریں، وہ منع کیا گیا ہے. باقی کام نہیں، وہ آسان ہے، ہوں وہ آرام سے کر لیں ہوں گے. اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے اتنی. اللہ تعالیٰ نے تکلف سے منع کیا ہے قرآن میں، ہوں منع کیا ہے. یہ بھی ایک ڈونٹس میں سے آ جاتا ہے. جیسے ہو وہ رہا. کسی چیز میں بھی تولا از ٹو فزیکلی ٹرن اوے. یو آل ٹرن اوے فزیکلی فرام دا بکس، دا کمانڈس. تم سب پھر گئے، فزیکلی پھر گئے بک سے. ہوں فزیکلی اور بک سے جو. پھرنے کا کیا ہے؟ بک تو ہوں پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہے نا. کوئی مر جائے تو ہوں نکال لیتے ہیں، وہی ہے نا ثواب کے لیے. ہوں رمضان میں کھول لیتے ہیں. تو فزیکلی ہوں ٹرن اوے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. آپ کے فزیکلی ایکشنز ٹرن نہیں. اوے، جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے تھا، اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے صرف ریسیٹیشن کی اس کی. ہوں
आपने उसको बुक ऑफ रीडिंग समझा, हम्म। यही होता है ना। जी। फद्दलल्लाहु अलैकुम व रहमतुहु, अब इसका तर्जुमा आप करेंगे, करें। फद्दलल्लाहु, फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मैं, लकुंतुम मिनल खासिरीन। फद मैंने ये फदलुल। फद्दला भी होता है इसलिए मैंने उसको फद्दला पढ़ दिया जल्दी में। ये हम्म। हम्म। फद्लुल्लाह ही है। फद्दला जो हम्म। होगा वो तो फेल होगा ना, है ना। अल्लाह का फजल, हम्म, फदलुल्लाहि अल्लाह का फजल। अल्लाह का फजल कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब जारी बन, नहीं ये वो बन रहा है इजाफी। इजाफी अल्लाह बन का रहा फजल, है। मुरक्कब अलैकुम इजाफी। तुम पर। एंड वरहमतहु एंड उसका, उसकी रहमत। हम्म, अब अलैकुम क्या है? लक। मुरक्कब जारी है। फजल किसी हम्म। चीज किसी के ऊपर होता है ना, तो तुम अल्लाह के पर। साथ आएगा, ठीक है। हम्म। व रहमतुहु, और और उसकी। रहमतु भी मरफू है और फजल भी मरफू है। तो इसका अतफ हम्म। किसके ऊपर जा रहा है? इसके ऊपर जा रहा है, यानी फजल और रहमत। फजल किया हम्म। अल्लाह ने तुम पर, तुम सब पर, और अपनी रहमत। हम्म। वो की जमीर कहाँ जा रही है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ जा रही है। अब दोबारा से रहमतुल्लाह ही नहीं आया, हम्म। फदलुल्लाह, फदलुल्लाह की तरह ये नहीं आया। लकुन तुम मिनल खासिरीन, ताकि लकुन तुम, तुम हो जाओ। लकुन तुम मिनल खासिरीन। काना का हम्म। इसम किधर है और काना की खबर किधर है? काना आ गया ना। हम्म। हम्म, काना की इसम जो है ना, लकुन तुम है ना, हम्म, तो तुम यानी हाँ, कि ये इसम हो गया, मरफू हो गया, और ये खबर ये होगी इसम हो गया मिनल और खास। उसकी खबर मिनल खासिरीन। चलिए इसकी डिटेल अभी पढ़ते हैं यहाँ पे, आप पढ़ें इसको। फजल क्या होता है? फेवर होता है। फेवर क्या हम्म। होता है? फेवर होता है जो आप किसी को बढ़कर दें। हक से बढ़ के। हर एक तो हक से हक है ना बढ़कर। उसका, और एक फजल जो है वो हम्म। फेवर है। हम्म। मुझे जरा फेवर देंगे, आप कहते हैं ना, यानी फेवर दे। जो बता ना भी हो तो भी दे रहे हैं। हाँ, वो आपका हक नहीं है, तो वो आपको फेवर हम्म। दे रहा है, ठीक है। आपकी क्यों हम्म। हेल्प कर रहा है। तो हम्म। फजलुल्लाह या फजलुल्लाह ही, अल्लाह, फेवर अल्लाह, फेवर ऑफ अल्लाह अपॉन हम्म। यू ऑल एंड हिज मर्सी, हम्म। ठीक है। अब ला का क्या मतलब है? श्योरली, यकीनन। हम्म। यू ऑल वर, अगर ये ना होता, फलाउ ला फदलुल्लाह, फलाउ ला, अगर ना होता तुम पर अल्लाह की रहमत और उसका फजल, लकुन तुम हम्म। श्योरली यू ऑल वर, हम्म। ठीक है ना, मिनल खसारे खासिरीन, मेरे। लूजर हो हम्म। जाते। और ये हम्म। खसारा, जब भी खसारे का लफ्ज आए ना, तो ये दुनिया का नहीं होता। खसारे का आखिरत। मतलब ही आखिरत का खसारा। हम्म। दुनिया का खसारा कोई खसारा नहीं है, ठीक है। हम्म। वो तो हम्म। कंपनसेट हो जाता है। एक कभी आपको हुआ, कभी फायदा भी हो जाता है, कभी डबल फायदा भी हो जाता है, तो वो कोई नहीं। आपकी सेहत हम्म। चली गई, थोड़े दिनों में आप ठीक भी हो जाते हैं, तो वो खसारा था। बिजनेस हम्म। डाउन हुआ, जॉब चली गई, आ गई, है ना। हम्म। आखिरत का खसारा जो होता है ना, वो नहीं, वो नहीं होता। अगर आप ऐसी दुनिया से अल्लाह की नाराजगी को लेकर चले गए तो वो नहीं होता। अच्छा, हम्म। थोड़ा सा और कर लेते हैं। वलकद अलिम तुम एंड, ये जो लाम आ रहा है ना, हम्म। ये सर्टेन और श्योर, इस दोनों के लिए आ रहा अच्छा। है, ठीक है। कद जो है उसका मतलब भी होता है श्योरली, और लाम आ हम्म। जाए तो उसमें और ज्यादा कसम के मानी भी आ जाते हैं। हम्म। कद के ऊपर लाम आ जाए ना, उसमें बहुत हम्म। ज्यादा, यानी कसम का मानी आ जाता है। अच्छा। कसम का मानी इसलिए आता है कि इससे पहले कसम छुपी हुई है, और कसम भी हम्म। खाने वाला कौन है? अल्लाह है। अच्छा। तो सोचो, एक झूठा बंदा कसम खाए और एक बंदा, एक अल्लाह ताला कसम खाए, तो फर्क है ना कसम हम्म। कसम में भी। जी। जी। एक सच्चा बंदा भी कसम खाए और अल्लाह कसम खाए, तो बहुत फर्क है। तो यानी तो यहाँ, वलाकद सिर्फ अल्लाह के लिए यूज होता है। हाँ, इसमें उक्सिमु का लफ्ज आता है। लक़द लक़द खलक़नल इंसान, तो अल्लाह हम्म। ताला कसम खा के कह रहे हैं कि हमने इंसान हम्म। को पैदा किया, हम्म। फी अहसनी तकवीम, यानी बेहतरीन साख्त में पैदा किया।
बेहतरीन उसकी जगह। बॉडी को बेहतरीन करके बनाया है। हम्म। जानवर देखें कैसे खाते हैं, कैसे खड़े होते हैं, है ना, हम्म। चार पैरों पे। हम देखें किस तरह दो टांगों पे अल्लाह ताला ने, कितनी बड़ी इसमें वो है कि दो हम्म। टांगों पे। जानवर जरा चल के दिखाए दो टांगों पे, जिनको अल्लाह ताला ने चार टांगों वाला बनाया है, नहीं हम्म। चल सकते। हम्म। उनको चार टांगों की जरूरत थी क्योंकि वह हैवी है। हम्म। हाथी है, ये है सारे, हॉर्स है, डोंकी है, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन जो दो पे हम्म। अपने कर सकते हैं, मुर्गी हो गई, रूस्टर हो गए, ये सब हम्म। कर लेते हैं। हम्म। बर्ड्स हो गई, दो दो टांगे हैं हम्म। उनकी। इंसान को भी हम्म। दो टांगों पे, और लेकिन सीधा खड़ा किया ना, वो कैसे खाते हैं? हम्म। कुछ लग क्या लिख करके खाते हैं, कुछ किस तरीके से खाते हैं, है ना। तो इन हम्म। चीजों पे गौर करने की जरूरत है, फिर आप अल्लाह से करीब होते हैं। फिर आप देखते हैं कि हम्म। आपके रब की क्या शान है ना। हम्म। फिर आपके दिल में मोहब्बत आती है, फिर हर अमल आसान हो जाता है, हर काम। हम्म। तो यहाँ पर उक्से मुंह जो है ना माजूफ है, और अच्छा। मैं कसम खाता हूँ, लाम जो जवाब हम्म। कसम पर आया, यहाँ से जवाब कसम शुरू हो रहा है। हम्म। इससे पहले कसम है, माजूफ है, यानी वो ओमिटेड इसी है। में आ गई। हम्म। हाँ, ये जवाब कसम पे लाम छुपी आया हुई है। है। और कद हमेशा माजी पे आता है। हम्म। यू ऑल न्यू, तुम, वलकद अलिम तुम सब क्या थे, जानते थे, जानते हो। हम्म। ठीक है ना। अब हम्म। फजल क्या है, पढ़ लें थोड़ा सा, इसको खत्म करते हैं आयत फजल फा दौद लाम। को। फजल is used for something extra. हम्म। It means to give something extra to someone that they do not deserve. That is a bonus given to an employee. Refers to the Bani Israel not being punished immediately. हाँ, इमीडिएटली उनको पनिश नहीं किया गया, बल्कि उनको मोहलत दे दी गई, उनका उनकी हम्म। सजा को हटा दिया गया। हम्म। फलौला फजलुल्लाह या फजलुल्लाह, ठीक है, दोनों तरह से। हम्म। वह रहमत, उसकी रहमत, अल्लाह की रहमत जो है ना, हमारे अमाल भी हमारे काम नहीं आएंगे, हमें अल्लाह की रहमत बचाएगी। नबी सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे भी अल्लाह की रहमत से ही जन्नत मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। हम्म। अमाल तो सिर्फ हमारे अल्लाह ताला देखेंगे कि हमने कोई कोशिश भी की है उसके रास्ते में कि नहीं की। अपने हम्म। ऊपर ही तो नहीं सब कुछ लगा के आ गए, कुछ शेयर भी किया उसकी नेमतों में से कि नहीं। हम्म। अब मैं जो इतना नॉलेज है, पता नहीं अब जिंदगी कितनी है, लेकिन इसको मैं अपने तक ही रख लूं, मैं इसको दूं नहीं, मुझे कुछ फायदा हम्म। होगा? और नहीं। अगर मैं किसी को दे दूं तो उसके आगे कितनी एक क्षमा से क्षमा लगता जलती है जालिया ना। हो जाएगा। हम्म। मैं जब छोटी होती थी ना, तो मुझे लपे आती दुआ बहुत पसंद थी। हम्म। और मैं हमेशा छोटी सी, बस मेरी मामा भी कही तुम क्या ये लगी रहती हो। और एक वो हम्म। दुआ, एक वो नात होती थी, शाहे मदीना। हम्म। आप इन पे जरा गौर कीजिएगा, इनके जरा, इसकी जो है ना, तो हम्म। ये दोनों जो है ना मेरी फेवरेट थी। अल्लाह ताला ने, देखते हैं ना कि अल्लाह ताला बंदे में क्या है, वो क्या चाहता है और आगे हम्म। जाके क्या करना। हम्म। तो वो हम्म। सारा सब करके अल्लाह ताला फिर आपको निकाल के आपको वो चीज दे हम्म। देते हैं। हम्म। और वो एक एक क्षमा होती है। मेरे हस्बैंड, मेरे अब्बू भी यही कहते थे, वो कहते थे बेटा एक लड़की को पढ़ाना पूरी फैमिली को पढ़ाना है। हम्म। और एक लड़के को पढ़ाना सिर्फ उसकी, वो जो उसकी फराइज है रोजी रोटी लाने की, उसके, उसको अगर आप हम्म। पढ़ा देंगे, जितना भी उसको इल्म दे देंगे, वो कुछ नहीं कर सकता फैमिली के लिए, बस वो अपने इल्म से एक जॉब करेगा। और उसकी हम्म। ड्यूटी भी वही है, अगर वो फुलफिल कर रहे, हलाल कमा के ला रहे। लेकिन हम्म। एक लड़की, अब उसके बच्चों से आगे उनकी फैमिली, उनके बच्चे, सोचते जाएं, नस्लें संवर जाती हैं ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने दुआ भी सिखाई कुरान में अपने वालिदैन के लिए, कि उनका शुक्र अदा करो, जो कुछ हम्म। तुम आपने मेरे वालिदैन को दिया और उनसे जो कुछ मुझे मिला। वो हम्म। क्या होता है, इल्म जितना वो आपको सिखा गए ना, अगर वो ना देते, फर्ज करें ना देते आपके हम्म। वालिदैन, तो आप उसके हम्म। ऊपर कैसे बिल्ड करते? हम्म। जिन्हें पहली दूसरी नहीं पढ़ी, सिलसिला टूट वो जाता है। हम्म। हाँ। तो जितना माँ बाप ने सिखाया, वो सिखा गए, उसके ऊपर आपने बिल्ड किया। हम्म। अगर वो ना देते, वो ना करते, वो स्कूल ही नहीं भेजते। कौन सुबह उठे, हम्म। कौन भेजाए, कौन इनके साथ मगजमारी करे, स्कूल का होगा कि नहीं। हमारे माँ बाप हम्म। ने हमें बेटों की तरह पाला।
हम्म कोई फर्क ही नहीं रखा ना। तो हम्म वो सारी चीजें मेरे में काम आई, मैंने उसके ऊपर हम्म बिल्ड किया। जी। तो और आगे पहुंचा है। हाँ, फिर वो पहुंचाने की जिम्मेदारी वो होती है कि बंदा अपने तक रख ले, तो वो भी सही हम्म नहीं है ना। खड़ा हम्म पानी जो है, उसमें तो बू पड़ जाती है ना। जी। खड़े माल में भी गंदा हो जाता है, उसमें भी हम्म आप रोजी आपकी जमा है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कहीं शेयर नहीं हम्म कर रहे। जब इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आप एक दुकान खोलते हैं, उसमें आप एम्प्लॉयज रखते हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं, कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो आपने कितनों हम्म की रोजी कर दी ना। हाँ, तभी तो कहते हैं ना, पैसा रनिंग में रहना चाहिए। रनिंग में रहना चाहिए। हम उसको सेविंग में डालते हैं, और हम्म बहाना क्या बनाते हैं कि जी कल मुश्किल वक्त में काम आएगा। तो जो हम्म आज दे रहा है वो कल आपको नहीं दे सकता, वो हम्म आपके बच्चों को नहीं दे सकता। जो आपके माँ बाप को भी दिया, जिसने खिलाया, आपको भी दे रहा, और आप, हम उनसे अच्छी जिंदगी गुजारे हमारे माँ बाप से, और हमारे हम्म बच्चे हमसे अच्छी जिंदगी गुजारेंगे जी जी। इंशाल्लाह। ठीक है। उनके हम्म बच्चे उनसे भी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा ही है ना। जिंदगी का मतलब है दुनियावी तौर पे। हम्म दीन तो फिर आपने जितना वो किया, वो दुनियावी तौर पे अल्लाह देते हैं सबको, काफरों को भी देते हम्म हम्म हैं। तो ये है कि फजल क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, फिर बोनस, अब ये जो मिसाल है ना एम्प्लॉय वाली, उसको जो बोनस मिलता है, ये है फजल की डेफिनेशन। इसलिए हम अल्लाह से कहते हैं ना, अपना फजल करें हम पे। फजल, एक्स्ट्रा मांगते हम फजल नहीं मांगते, हम दूसरों का जो फजल हो रहा है ना, उसको भी हम कहते हैं हमें मिल जाए। उस पे क्यों हो रहा है, वो हट जाए और हमें मिले। हम ये नहीं हम्म कहते कि उसको अल्लाह ताला दे रहे हैं तो हमें भी दे सकता है। ये चीज अपने अंदर हम्म लानी है, हम्म वरना हमेशा वो आगे बढ़ता जाएगा और तुम इसी तरह कुड़ते रहोगे। ना उससे हम्म छीनना है, ना आपको मिलना है। हम्म बात दफा बहनें भी होती है ना, तो उनके बच्चे भी आगे बढ़ रहे होते हैं, एक बहन के आगे दूसरे के थोड़े पीछे रह गए, तो वो भी एक दूसरे से कोड़ी होती है, देवरानियां जेठानियां कोड़ी होती। कंपैरिजन नहीं गलत है, मुझे तो लगता है कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए इन चीजों में नहीं अपने उस। करना। हाँ, इन चीजों में हम्म नहीं करो, दूसरी चीजों में करो, दीन में करो। हम्म उसको फिर रश्क कहते हैं, उसको हसद नहीं कहते, उसको रश्क कहते हम्म हैं। हम्म वो आप रश्क कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा कुरान पढ़ती है, उसकी पॉजिटिव रेसिटेशन सेंस में। कितनी पॉजिटिव पॉजिटिव है। देखिए वो सबका खैरात कर रही है, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी अल्लाह ने दिया है। देखो वो हम्म हर साल वो नमाज कभी नहीं कज़ा करती, वक्त पे पढ़ती है। इन चीजों में करें, इनमें, उन चीजों में आप, वो अल्लाह ने दी है, उसका फजल है, उसमें कोई हाथ, अल्लाह की अता है, वो आपको भी दे सकता है, आप मांगे। हम्म ये जो हिदायत है ना, ये आपको मांगने से नहीं मिलने वाली। हम्म ये आपको हिदायत जो है ना, ये ये अल्लाह ताला खुद देते हैं, खुद देते हैं, खुद खुद चूज देते हैं। करते हैं। हाँ, हम्म खुद चूज करते हैं, फिर आपको मिलती है, तो उसके लिए आपको हम्म दुआई करनी होती है फिर। हम्म खासिरीन क्या है, लूजर। यूजर्स। खासिर, खासिर उनसे खासिरीन है, जरा खासिर उनसे पूरी गर्दान बनाए। खासिर उन एक खसारा पाने वाला, खासिरानी दो, खातिरुन। खासिरूना। हम्म और यहाँ पे क्या खातिरन। है, हम्म खासिरन, खासिरैनी। खासिरुन से के नीचे खासिरन आएगा ना, नस्बी हम्म हालत। ठीक है ना। हम्म और फिर खासिराइनी, खासिर, खासिराइनी दो दफा आ जाएगा। और खासिरिन, उसमें भी आपने यही वाला कॉपी पेस्ट कर देना नीचे। हम्म खासिरन, खासिरैनी, खासिरीना, खासिरिन, खासिरैनी, खासिरीना। और यहाँ पर हम्म खासिरानी और खासिरूना, यहाँ पे थोड़ा हम्म डिफरेंट है। ये दोनों हम्म सेम कॉपी पेस्ट करने हैं आपने। जी। तो अगर इसकी मुन्नस बन जाएगी तो खासिरतुन हो जाएगी, है ना। हम्म तो हम्म खासिरतन हो जाएगी। हम्म उसके बाद यहाँ अलिफ ऐड हुआ था, खासरतुन तन पे नहीं होगा, अलिफ ऐड नहीं होगा यहाँ पे। हम्म खासिर, खासिरतिन। खासिरतिन जी। अब इनका मुसन्ना बना ले, वही बनेगा खासिरतानी, है ना। हम्म खासिरातुन, खासिरातुन। खासिरत। हम्म खासिरूना नहीं बनेगा, वो मुजक्कर के हम्म लिए खासिरातुन। ता आ गई है। खासिरतन, खासिरतैनी, खासिरात, यहाँ पे क्या होगा, खासिरतन, खासिरतैनी, खासिरतनी, खासिर, खासिरा। ता आ गई। खासिरात, वहां पे तो खासिरात तन है नहीं, ना, और यहाँ पे खासिरत नहीं खासिरत, हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, तई नहीं हो जाएगा। तैनी तो यहाँ होगा ना, खासिरतन, खासिरतैनी। यहाँ जमा में क्या होगा, खासिरत, खासिरत
तन हो जाएगा, बिल्कुल खासिरातन, खासिरातन, गुड गुड, खासिरातिन। खासिरात। और जरी हालत में खासिरात। खासिरतिन, खासिरतैनी, खासिरातिन, कॉपी पेस्ट करना है। हम्म। नस्बी जरी हालत एक है, हम्म। जो आपने यहाँ बनाई है ना नस्बी हालत, वही जरी हम्म। हालत भी है। हम्म। समझ आ गई ये बात? जी जी। एक दफा इसको लिखिएगा अपने हाथों से, एक पेपर लेके सही। बेशक बाद में उसको हम्म। रिसाइकल कर देना, लेकिन कहीं लिख लें, बुक पे ही लिख लें, आपके सामने रहेगी कि मोहन्नस की हम्म। मैंने कैसे बनाई है, मुजक्कर की कैसे बनाई। हम्म। खासिरुन, खासिरानी, खासिरून, ठीक है। फिर खासिरन, हम्म। खासिरैनी, खासिरीना, खासिरिन, खासिरैनी, खासिरीना। और फिर मोहन्नस मैंने गोल तार लगा के बनाई, खासिरतुन, खासिरतानी, खासिरातुन, खासिरा तन। तन में मैंने अलिफ नहीं ऐड करना यहाँ पे। खासिरतन, खासिरतैनी, खासिरातिन। ये तिन वाला जो है ना, ये वाला आपको ये सही। हम्म। इसको कहते हैं इस्मुल फाइल। रूट वर्ड आपका फाइलम के वजन पे इस्मुल फाइल। तो ये क्या हम्म। होता है, लूजर क्या है, ये समझ आ गई है आपको? खुसरन मीन्स, खुसरन मीन्स लॉस, when a लॉस। person doesn't get any benefit from हम्म। something, loss of दुनिया एंड आखिरत। दुनिया में आकर। लेकिन हम्म। स्पेशली यहाँ पर ये कहते हैं कि आखिरत का ये तो पूरा हो जाता है। ठीक है, हम्म। ये हम्म। हो जाता है, दुनिया में ही हो जाता है। बनी इसराइल आर बीइंग, पढ़े। are being reminded of the covenant taken by their forefathers. Their descendants were also to follow the book. The Bani Israel at the time of the Prophet are being reminded of this, to follow the Torah and believe in the Messenger. We should benefit from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala by thanking Allah. We should also learn of His might and power. A mountain was suspended in the air. वी शुड बी कांस्टेंट, We should be constant in the studying the Quran, holding on firmly to the book of Allah develops taqwa. डिवर्स तक ये इसका एंड रिजल्ट है। Hmm. हमने अपनी बुक को पकड़ना है, हमने उनसे नसीहत लेनी है, उन्होंने अपनी किताब को नहीं पकड़ा, उसमें चेंजिंग भी की ना, उनकी किताब असली हालत पे नहीं Hmm. है। हमने Hmm. अपनी बुक ना इसमें कुछ करना है और ना कुछ नहीं। फिर हम यहाँ Hmm. से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, हमारी 64 आयत हो गई है। जी। ठीक है ना, आगे पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह। ये 65 सब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, याद रखिएगा, मैं यहाँ से खोल जी देती हूँ बस। जी, सुब्हानक शुक्रिया। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। किसी ने कहा था कि थोड़ी रिकॉर्डिंग लंबी होती है, थोड़ी छोटी किया करें ना। तो अच्छा। उनका उनके मैं बता दूंगी कि हर उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अब सुनते हैं ना लोग। तो मैं हम्म। ये बात बता दूं उनको यहाँ पे कि हर, जैसे आपकी क्लास हफ्ते में एक ही बार होती है, बीच में आज छुट्टी भी हम्म। आ गई थी ईद की संडे को, तो वैसे हम्म। तो हम छुट्टी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता ही अल्हम्दुलिल्लाह। है कि वो पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं, और अगर उनकी क्लास में छोटी से लेके छोड़ दूं आधे घंटे की या पौने घंटे की, 40 मिनट्स की, हम्म। तो वो फिर क्लास तो नहीं हुई ना हो, है ना। और मेरे तो आप यकीन करें बच्चों के लिए सिर्फ क्लास नहीं है, मतलब हम तो इतना कुछ सीखते हैं। मैं तो आपकी बातें ना आगे अपनी बहनों को भी फिर बताती हूँ कि ना हाँ, देखो ये जो बीच में बताती है ना, मतलब इस मेरे लिए तो ये क्लास नहीं होती समझ लें, बाकी भी एक नसीहत समझ लें, और जो थोड़ा बहुत होता है ना अपने आप को बेहतर करने के लिए चीजें, तो मैं यही तो तो उनको भी काम बताती करना है, और करना क्या है, तकवा करना है ना बस, और क्या है। हूँ। इतनी सारी बातें आपकी ना अपनी बहनों को बताती हूँ, मेरी टीचर ये बोल रही थी, उन्होंने ये कहा था, तो देखो ऐसे करना चाहिए, तो मतलब हम तो दोबारा भी सुनते हैं ना, तो ये बातें भी दोबारा सुनते हैं। तो हाँ, रिमाइंडर हो जाता है, सही है। तो जी जी, याद नसीहत, रहती जिक्र का मतलब भी है। ये होता है, रिमाइंडर, हम्म। यानी बार बार जिक्र करना। जिक्र, ये जिक्र किसको करते हैं, जिक्र उसको करते हैं जो हमें, ताकि हमें जिक्र क्यों करते हैं, ताकि हमें भूल ना जाए। याद रहे जी। हाँ, जिसको हमने बुला दें, जिसको हम बुलाना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करते। मसलन कोई ऐसा हम्म। बंदा है जिसको हम, कोई नहीं है, हमने क्या है करना उसको, है ना, तो उसको हम याद नहीं करते। जी। मसलन कोई आपको कहीं मिल गया, हॉस्पिटल में मिल गया, किसी क्लिनिक में मिल गया, तो आप उसको थोड़ी याद रखेंगे, है ना। लेकिन याद उसी को हम्म। रखा जाता है जिसको आपने याद रखना होता है, उसका जिक्र भी करते रहते हैं बार बार। तो अल्लाह की हम्म। किताब जो है वो भी, उसका एक नाम जिक्र भी है।
तो मैं फिर हम्म। दोबारा से वही बात दोहराऊंगी कि हर क्लास हफ्ते में बेचारों को 8 दिन वो वेट करते हैं और उनको उन क्लास की बारी आती है। हम्म। आप आज मैंने कितनी किताब क्लास ली, मैं आपको बताऊं, 4 क्लासेस मैंने ली आज। माशाल्लाह, अच्छा। मेरा देखे ना, मेरा देखे, आपको अगर हम्म। 20 मिनट या ये इतनी सी क्लास सुननी है एक अपनी, ज़ाहिर है हर बंदा हम्म। एक ही किताब पढ़ता है ना, जो ये पढ़ रहा है वो हम्म। यही पढ़ रहा है, ठीक है ना। हम्म। आप हम्म। इंग्लिश में पढ़ रहे हो, ये पढ़ा है, तो आपको 8 दिनों के बाद एक दफा आपने बैठना और आपने करना है। तो हम्म। आप उसको लंबा नहीं समझे, और मुझे कभी भी कंप्लेन नहीं आई। जिनको करना होता हम्म। है ना, देखिए मूवी भी तो आप तीन हम्म। घंटे की देख लेते हैं ना बैठ के। जी जी जी, बिल्कुल सही और बात है। इतनी बकवास तरीन मूवीज आ रही हैं आजकल, कोई ढंग की, हम्म। कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बस म्यूजिक 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 शोर। हम्म। तो उसमें हम्म। भी तो आप 3 घंटे, बल्कि पैसे भी खर्च करते हैं, सिनेमा में जाके 3 3 घंटे बैठते हैं। तो ये तो हम्म। अल्लाह की किताब है, इस पे आपकी आखिरत बेस करती है। और आप सही हाफ बात। सुन लेना, बीच में नमाज के लिए उठ जाएं, कर लें, फिर उसके बाद आप सुन लें, क्योंकि जरूरी है पूरा ही सुननी है। सही बात है, और फिर वो अच्छे टीचर की भी बात होती है। अब जैसे आपका तो मतलब एक्सपीरियंस भी है ना, तो मतलब अब आप जो बातें बताती है ना, वो आप वैसे शायद इतना समझना मुश्किल हो इधर उधर, आजकल कोई बातें करता भी नहीं है अच्छा। तो कोई अच्छी टीचर है अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कोई बात बताए, तो मेरे तो मैं बता रही हूँ, मेरे ध्यान में बैठ जाती है आपकी बातें। बिल्कुल ऐसा ही है, और लेना भी चाहिए, ठीक है। और ये मैंने एंड पे जो किया, इस रिकॉर्डिंग तो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन मैंने वाजिया कर दिया। हर एक को ये हम्म। मैसेज जा रहा है, क्योंकि ये क्लास बहुत से लोग सुनते हैं, तो हर एक को ये हम्म। मैसेज जा रहा है कि रिकॉर्डिंग, अब देखें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो गया मैं हाफ एन आवर पढ़ा के चली जाऊँ, क्योंकि आपने इतना हम्म। वेट किया। जी जी। तो आप भी तो दोबारा सुनती है ना, एक दफा मेरे साथ क्लास लेती हैं फिर दोबारा सुनती हैं जी रिमाइंडर जी, के हम तौर। जरूर करेंगे। हम्म। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह ताला हमें अमल वाला बनाए, और सिर्फ हम वही ना करते रहें बस कि दुआओं हमने में याद रखा लर्न करें कर लिया। सबको, बच्चों को भी। आमीन आमीन, इंशाल्लाह आपके साथ हैं दुआएं, आप फिक्र ही ना करें, इंशाल्लाह। ठीक है। ये जो इंशाल्लाह। इखलास और खैर ख्वाही और ये सीजन जो चीजें होती है ना, ट्रांसफर हो रही होती हैं। अब जी मैं जी। अगले दिन गई तो मेरी समदन का वो हार्ट का वो स्टंट वगैरह लगाया। मैं जब गई तो वो अच्छा। इतनी वीक, बड़ी मुश्किल से चल के मेरे तक, मैंने कहा आप आई क्यों, मैं ऊपर आ जाती, कहती है नहीं मैं हर एक के लिए आ रही हूँ, तो आपके लिए तो मैंने आने। तो वो आई और वो हम्म। बिल्कुल चल चल के ना मेरे बराबर में, और वो मैंने उनके हम्म। साथ बातें की, सब कुछ है, मेरे बराबर में बैठी हुई। तो जब मैं निकलने लगी तो मैंने उनका चेहरा देखा, तो माशाल्लाह, सुर्ख सुर्ख, अच्छा। वाह वाह। यानी आपको इतना हम्म। असर पड़ता है। बहुत, जी जी, ये बात तो है। पॉजिटिव बातें करने वाले का अलग एक असर पड़ता है, नेगेटिविटी फैलाने वाले का अलग एक असर पड़ता है, अलग असर पड़ता है, सही बात है। ठीक है ना। तो वो इतनी, हम्म। जैसे इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, और उठी हम्म। और फिर और दरवाजे तक छोड़ के आई, और फिर वो सब हुआ। हम्म। तो हमें दूसरों के फायदे का बनना है। फायदे का तभी जी। बन सकते हैं जब हम खुद भी पॉजिटिव रहें, हम खुद भी सुकून में और हम्म। दूसरे को भी सुकून में रखें। हम्म। ये जो सही फसाद बात। फैलाते हैं ना लोग, इनके अंदर भी अमन नहीं होता। हम्म। घरों में झगड़े होते हैं, सही फसाद कह रहे इनके अंदर अमन नहीं होता, इनके अंदर ईमान नहीं होता, इनके अंदर पीस नहीं होता। ईमान इज हो। पीस, वो हम्म। अंदर नहीं है, इस्लाम इज पीस, वो आपके अंदर नहीं है, तो बाहर क्या हम्म। रिफ्लेक्ट होगा। आप हम्म। खुद नेगेटिव है, नेगेटिविटी फैला रहे हैं आप दूसरों को, वैसे और ही वो इतनी सीखते भी नेगेटिविटी। नहीं है, वो सीखना चाहते भी नहीं है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि वो इतने आदी हो चुके हैं इसी लाइफस्टाइल के कि वो बदलना भी नहीं चाहते अपने आप को। हाँ तो छोड़े ना, आप तो अपना अपना फर्ज पूरा करें ना, वो तो हाँ, अल्लाह मैं ताला ने। भी वाकई कहती हूँ कि आपको फिर दूर हो जाना चाहिए उनसे। हाँ ये बेहतर है होता कि आप जब उनसे मिलें तो थोड़े मोहतात होकर मिले, क्योंकि उनसे है। आपको नेगेटिविटी मिलनी है। जी। कम मिले, यही अगर बात। कहीं टकराव हो जाए, वो कालू सलामा वाली बात है ना। हम्म। ठीक है, चल, हम दुआ इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे। ताला ने हमें हर चीज सिखाई है ना कुरान में। जी जी। किस जी। तरह के लोग जो बहस मुबासा और आपकी कोई उस तरह नहीं, तो वो आप उनसे थोड़े किनारा कश रहे हैं। हम्म। अपने आप को, अपने रिमोट उनके हाथों में ना दें। हम्म। वो आपको हंसाएंगे तो आप हंसेंगे, और वो आपको रुलाएंगे तो आप रोएंगे। जी, समझ आई बिल्कुल है। सही बात। हम बात दफा जी कर जी। देते हैं, अपने रिमोट दूसरों को दिए होते हैं, अपने रिमोट हम्म। अपने पास रखें, हम्म। इतने मजबूत हो जाएं कि कोई आपको हिला ना सके। जी। ठीक है, फी इंशाल्लाह। अमान अल्लाह, जी। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।